To say that I'm always on time is also full of ego. That means everything is under my control. But one has to plan for things not under their control and try to be ready early, which I did not. So I'm so sorry about that. Uh, so July 6th is Rath Yatra in Harrisburg. How many of us have ever been to any Rath Yatra? Oh, a lot of devotees have been to Rath Yatra. Very good. Where did you go from Rath Yatra? Harrisburg. Last year. Harrisburg. माता जी आप भी हरिश्वर रथ यात्रा में नहीं बाल्टीमोर में गए थे आप हाँ इस बार गए थे बात नहीं लास्ट ईयर गए थे Harrisburg में थे. आप Okay. Okay. And he came to Harrisburg and Baltimore. आप कहीं नहीं गए प्रभु जी देखा है रथ यात्रा कहीं पे गोवा में इंडिया में गोवा में इंडिया में गोवा गोवा में में की। वाह अब मैंने लाइव देखा था yeah. very nice so this Rath Yatra is on 6th July in Harrisburg. The actual Rath Yatra in Jagannath Puri happens on Asad Sud Bij, which is falling on 10th July. Last year also the way things worked out, our Rath Yatra and Jagannath Rath Yatra in Puri was just one day apart. So Snana Yatra, there is a festival called Snana Yatra. I will talk about everything. So I thought I'm here this week, and by Krishna's arrangement, I'm here next week also. So it'll be nice to glorify Lord Jagannath. This is Jagannath, Baladev, Subhadra. Here. So we'll talk about Jagannath, how he appeared, his pastimes. So we are prepared to receive the Rath Yatra festival. And it is my sincere request to all the devotees that please please come 100% to the Rath Yatra. And not only come, bring your whole family. And not only family, your friends, anybody you know. Anybody you can tell, come, you should ask them to come. And why, I'll tell you. So, this is, when we have Jagannath Baladev Subhadra at our home, they were our first Thakurji. Just like Devendra Prabhu has Kishore Kishori, Laddu Gopal. And you have put Chandan on it. Good. And there is Gaur Nitai, Nitai Gaur Sundar from Manoj Prabhu and Mataji. Similarly, that is their first Thakurji they started worshipping. Jagannath Ji was first in our house. And I didn't plan to talk about this, but now I'll say how it happened. But before that, let's just do invocation prayers, because once I start talking, I won't stop. And it is also my humble request to all the devotees that the file folders have these invocation prayers. So please take time to memorize these prayers. And it is good to recite them every day at house. Good to make the children recite them, because they are very auspicious. Anytime there is anything good that is to happen, there is a Mangalacharan that happens before that. Right? So this invocation prayers, it's like a fancy English name, but it is Mangalacharan basically. So every day our morning should also start with a Mangalacharan, and our day should end with a Mangalacharan also. But at least in the morning we should do Mangalacharan, so that we remind ourselves that Krishna, you are my master, or you are my friend, whatever is our relationship with Krishna, and we both will pass this day together. If there is something you need to do for me, please don't hesitate. And I will also try to do some things for you during the day. So similarly, you remember Krishna, just like in the morning you wake up and touch the feet of the parents. And children, you do that. You forgot already. How many of you touch the feet of your parents and mother and father? You, beta? Very nice. You do that, Hans? Every day. Very proud of you. Every day तो नहीं करता I used to do it. Used to. So what happened? You no longer like them anymore. They don't give you the candy you like. Huh? I do. Aryan does that. Do you remember what will happen when they say, we used to take care of one sometimes when we feel like that? Check out Tiger. Surat Prabhu, you do that? Every day? Where is Bhavya Mataji? Oh, Bhavya, I'm so happy to see you smile. Did you touch the feet of your parents every day? Why can I bring my hands home? Bhavya? Oh,
बहुत छोटी, उसको समझ में नहीं आता. Prabhuji, I have a question. हाँ. Like in our side, the girls doesn't touch the feet Then of don't. the... Then Yeah. don't. She does Hare Krishna and all that. Okay, that's Yeah. good. So Mentally तो that's प्रणाम कर सकते why- हैं. Yeah, we do like this. In our side, we touch the feet of our wife every day. So जिसके वहाँ पे ये नियम नहीं है वो मेंटली प्रणाम कर सकते हैं. So I like this boy. Nobody remembers him, but when we had this Gaurang Mahaprabhu's drama, Chandka's drama, he was standing in the line and he started dancing and he was making faces. If anybody has video, you should watch the end portion of the video. He was really funny. But every child, including big child and me, we should all touch the feet of our parents every day. तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्व मम देव देव. We address Krishna as our mother and father. Similarly, Krishna manifests in our life as our parents. No matter how bad they are, still it's a representation. Representative है भगवान के. भगवान सोचेंगे कि जो अपने माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, kids, who did so many things for us, if this person has no gratitude for them, his act of love and all the show of doing आरती for me is all acting, waste of time. जो मेरे सामने खड़े, उसके सामने है, इतने साल तक जिसको पाल पोस के बड़ा किया, है ना, माँ especially, जो अपने घर में रखी, अपने पति की भी गालियाँ सही पुत्र या पुत्री की वजह से, right? Mother is always very protective. Right? And even after the child is married or the daughter is married, they keep worrying about them. Right? कोई जाता होगा तो उसके साथ कुछ खाना बना के भेजेंगे. Everything. They take so much care for the children. इसके लिए अगर if you don't have gratitude, how will I trust you when you tell me that Krishna, I'm your devotee, I chant 16 rounds and all that? It becomes a show. Right? A person who is good at heart is good at heart everywhere. Right? If Devendra Prabhu does so many things for me every day and I neglect him, then how will Krishna believe that, I am a good friend of Krishna? Because I don't know what friendship is. I don't know. So one should show. It is love, not even gratitude. Gratitude is a formal word, but at least जिसके माता पिता यहाँ पे नहीं है, एक फोटो रखना चाहिए. मैं नहीं कहता बड़ा बड़ा फोटो रखो कहीं पे, कुछ भी नहीं, छोटा सा फोटो रखिए कहीं पे भी, मंदिर के पास जहाँ पे भी रखना चाहिए. प्रणाम हर रोज होना चाहिए सुबह शाम माता पिता को. एक्चुअली जितना जिसके हैं उसको जितना हो सके उतना पाँव छूते रहना चाहिए. पर कम से कम मेरे एक बंधु है जो मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, मुसलमान परिवार से हैं, वो भी मुझे बोलता है कि माता के चरण कमल में सभी तीर्थ स्थान है. भगवान का, माता के चरण कमल में भगवान का वास है, तो उसको छूने से सब कुछ मिलता है. तो माता पिता को प्रणाम करना चाहिए. हमारे आयुष में तो नियम है, किसी के भी माता पिता कहीं से भी आते हैं, मनोज प्रभु के आ गए तो सभी बच्चे उनके पैर छुएंगे ही छुएंगे. जितनी बार प्रोग्राम में आएंगे, न बच्चे भी नहीं बड़े लोग भी उनके पैर छूते हैं, जिसके भी माता पिता है, किसी के भी आ जाए. One should respect them. So this invocation prayer, everybody should remember. This creates Mangalacharan. Just like touching the feet of our parents will clear Mangalacharan in our life. So I kindly request that take a month. Pariksit Prabhu was saying it takes 21 days to create a habit. Right? So for 21 days, if you read these slokas every day in the morning, you will remember them. It will become a habit to read them in the morning, even if you can't remember. So let's recite them together. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yenam Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Shajivam Sa Advaitam Sa Avadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So we were talking about Jagannath. Anybody who used to come to our house and they are not familiar with Jagannath, everybody know who these three are? Let me ask this question. Who this? Because so many people sometimes they come to our house. Oh, Sitaram Lakshman. They say no, it's not Sitaram Lakshman. So who these three are? Anybody knows? Hans knows. Oh my God! Go on. You tell me. Yeah. Jagannath, Subhadra, and Baladev. So what is the relationship with each other? Hans, you know beta? Okay. Anybody else knows the relationship? Wait, the first one, that one's Krishna. Okay. And that one is Yeah, you're right, on the right point. His brother, what is it? Yeah, what's his name? Balaram. So you know the relationship. The first one is Krishna, the last one is Balaram. So who's there in the middle? Radha? No. Radharani. Radharani. Oh my God, he's already a certified devotee. Yes, beta. Jagannath's sister? Yeah, and what's the name? Subhadra. Subhadra. Everybody remembers when Vasudev married Devaki, there was Akashvani that the kaunsa wala beta, Athva putra Kunti ka, will kill Kans. So Kans imprisoned them, right? So Kans was killing each and every children. He killed 6 of them. 7th, Balaram came in the womb of Devaki. Okay. Now Vasudev had few wives. So his another wife's name was Rohini. So since Kans was imprisoning Vasudev and Devaki, there was nobody to look after Rohini. So Nanda Baba was a very dear friend of Vasudev. And some other day we will talk, but Nanda Baba and Vasudev, they are brothers. Their great grandfathers came from the same father. But one had a cowherd woman as a wife, and they were all Kshatriyas, but one married a cowherd woman, and from her the lineage came, and that is Nanda Baba. And one is Vasudeva. So they are very close. They are brothers also. They are very close friends also. So Vasudeva requested Nanda Baba that can my wife Rohini stay at your place? So Nanda Baba said okay. So when Balaram appeared in the womb of Rohini, Bhagavan Sri Krishna ordered his energy Yogamaya to move Baladev from the womb of Devaki to the womb of Rohini in Nandagaon. Okay? So that is why so Kans felt that the 7th child was just a miscarriage. He felt that. Because suddenly there was somebody in her womb and then suddenly the next day there is nobody. But he was transferred into Rohini's womb. So he appeared in Gokul and he was called son of Nand Baba because it was hidden that Rohini is pregnant and it's just Nand Baba's son he was called. Then 8th child appeared in the womb of Devaki. When the 8th child appeared and he was born, right, Krishna came. Similarly, the Acharya write in Vrindavan also, Mother Yashoda was pregnant. And Yashoda was very elderly at that time. At very late age, she had the first child. So she was pregnant, but she had twins at that time. And out of the pain of pregnancy, she was unconscious by the arrangement of the Lord. So she had given birth to twins, one boy and one girl. One boy was Krishna, and one girl was Yogamaya, who appeared. So Krishna appeared 2 places simultaneously, one at Devaki's womb, one through Yashoda's womb. Not many people know this thing, right? They say, oh, Krishna is Devaki Nandan. Yeah, he's Devaki Nandan, he's Yashoda Nandan also.
And then when Vasudeva brought Krishna from Mathura to Vrindavan, to Gokul, he was in a hurry. And there they didn't have like LED night lamps or anything like that. So there were two child they were born, and one was on either side of Mother Yasoda. He took the daughter. He did not see the other Krishna over there, and he placed his Krishna over there. So both Krishna merged together. Okay, and then when at the age of 11 or so, when Krishna left Vrindavan, Yasoda's Krishna remained in Vrindavan, but Devaki's Krishna went back to Mathura. This is all written by commentaries of Acharya. This is mentioned in Srimad Bhagavatam, but expanded by the commentaries of Acharyas. So Yasoda's Krishna remained invisible in Vrindavan because Vrindavanam paritajyam pada ekam na parigacchati. Krishna never leaves Vrindavan. So this Krishna, who is the son of Yasoda and Nand Baba, stayed in Vrindavan, but he went to Mathura to kill Kans, and then he went to Dwarika and everywhere else. So the girl whom this Vasudeva picked up, is sister of Krishna, Yogamaya. Krishna blessed that girl that since you participated in my pastime, but actually when Vasudeva brought the girl back, Kans came to kill the girl, and when he threw her on the stone, she manifested as a eight-handed Mother Durga. And it was Kans Ishtadevi. And Kans was so terrified to see her. Krishna had blessed Mother Durga that since you helped me in my pastime, I give you a boon that from today you will be worshipped all over the world as Chandika, Chamunda, Kali and all. That's why there is so many manifestations of Mother Durga everywhere. And that same Yogamaya potency appeared as the sister, as a daughter of Devaki and sister. So that is Subhadra. So this is Jagannath, Baldev, Subhadra. So let's talk about how did they come to US, and then we'll talk about their appearance. Srila Prabhupada, in late 1960s, he came here in 1965 and at the age of 69, and he went to San Francisco in 1967. When he was in San Francisco, he was sitting like this. Prabhupada always used to sit on a floor, and he used to have a small table on which he would write and have all the books and everything. He had one American disciple, her name was Malti. One day Malti came from outside, and she had went to some curio shop, like we have Tuesday Morning and Pier 1 Import and all this. They bring stuff from other countries and they sell 21 villages or something like that. So she went to such, and there was a small statue, she liked it, and the statue attracted her. So she brought that statue and she wrapped it in her sari. Sari has a pallu. She wrapped it in the pallu, and she came and she put, Prabhupada, look what I found today. And it was just this small. She unfolded and put it in front of Prabhupada. As soon as Prabhupada saw, Prabhupada left everything he was doing and he bowed down and did a Danvat Pranam. Everybody is astonished. Why is Prabhupada doing Danvat Pranam to this statue? So Malti said, Prabhupada, what happened? Prabhupada said, do you know who this is? And she goes, no. Yes, that is Jagannath. He says, she got a statue of Jagannath. That is Jagannath. So who is Jagannath? Jagannath means the Lord of the universe. He is Krishna himself. Where did you find him? She said, I found him in a store here. He says, were there any two more similar to him? She said, yeah. So go bring them also. So she brought Subhadra and Baldev also. So that small Jagannath, Baldev, Subhadra first came to San Francisco like this, by divine arrangement. Right? There is no coincidence in this world. Believe me, my friends. Right? People say, oh, accident ho gaya. There is no accidents. There is all by perfect arrangement of nature, based on karma and everything else. Your life, everybody's things are governed everywhere. And we are just a part in that whole act. Right? So, Jagannath Baldev Subhadra came. So there was one disciple of Prabhupada, his name was Shyam Sundar. He knew some wood carving. So Prabhupada said, Shyam Sundar Prabhu, can you carve bigger Jagannath Baldev Subhadra looking at this? Shyam Sundar said, yeah. So he got 3 logs of wood, and he used to live in an apartment. So he started carving Jagannath out of wood. Jagannath is made always out of wood. So one day Prabhupada visited Shyam Sundar. Shyam Sundar was, later on his name became Shyam Sundar. Before he was Sam or something. But he used to come and visit Prabhupada. So
Prabhupada came and he saw Shyam Sundar, he was carving Baladev or something, and he had put a cigarette butt on Jagannath's head because he used to smoke and carve. Prabhupada said, "You putting this because he was using Jagannath's head to rest his cigarette and ash or whatever." So nobody knew who Jagannath is, who Baladev is, this all. This is how the first Jagannath in our movement in ISKCON was carved in the Western Hemisphere. The first time Jagannath came out of India like this. That Jagannath is still in New York. And they come in New York Rath Yatra. That's the first Jagannath. Shyam Sundar Prabhu carved another set of Jagannath at the same time. The second set is in the Baltimore temple. So the Baltimore Rath Yatra you saw is another Jagannath that were carved by Shyam Sundar Prabhu, that big. So that is how Jagannath came to US. And Prabhupada said, Jagannath has come, so we have to do the Rath Yatra of Jagannath. The Rath Yatra is the Jagannath, Baldev, Subhadra, they come out on a chariot and everybody pulls the chariot. The first Rath Yatra happened in San Francisco. It was on a flatbed truck. Truck hota hai na? Flatbed truck. No, and they had put Jagannath in this direction, Subhadra in that direction, Baldev in this direction. One looking here, one looking there, one looking. Devotees had no idea what to do. And the truck was slowly moving and they were doing kirtan. They went to the beach and they had a big festival. There was one disciple of Prabhupada, his name was Jayananda. He was a mechanical engineer. But even though he was a mechanical engineer, he had no interest in working as a mechanical engineer because he thought there is something higher than all this thing. So finally he met Prabhupada and he gave up his mechanical engineering job and he became his disciple. He designed a cart for the Jagannath Rath Yatra. Prabhupada gave him the task. And the very first cart that was built by him. He used to, single-handedly he built the cart. Anybody who would come, he would say, "Can you help hold this wood for me, hold this piece of iron for me?" He would go and find some gears from somewhere, from junkyard, some steering mechanism. But that's how he built the very first cart. And he had cancer and he passed away after a few years, very young age. But till his last breath, he was working on Rath Yatra, always, every year. So Prabhupada wrote him a letter when he was passing away that, "My dear sir, my dear son, Jayananda Prabhu, since you have started Rath Yatra of Jagannath in Western Hemisphere, and since you have worked so hard, I am very sure that Krishna will come and take you back home to his Golok Vrindavan. There is no question about this." But then Prabhupada ordered that anywhere in the world a Rath Yatra happens, they should have a picture of Jayananda Prabhu on the cart. So even today, you will see anywhere in the world, there is Rath Yatra, there will be a picture of Jayananda Prabhu dancing in front of Rath Yatra cart. Everywhere, that's Prabhupada's order. To honor this great personality, Jayananda Prabhu, who in just few years dedicated his life to Lord Jagannath. So who is this Jagannath? That people are so crazy, every year they spend so much money and take him out on the cart and all this thing. Satyuga, which is many years ago, many years ago, there was a king called Indradumna. He was a very pious king. He used to have dreams of Krishna, and in the dream he came in a certain form. Nice, playing flute, bluish color in complexion, and the name was Nilamadhav, Krishna's name. So he found out the name also in the dream, that the name of Krishna was Nilamadhav. So he kind of described, how these criminals, somebody has seen a criminal, they'll ask him to, "Can you describe?" They'll draw a sketch of that criminal, right? And then they search the criminal based on that. So this criminal who stole the heart of Indradumna Maharaj, Krishna, King Indradumna Maharaj described him, made a sketch, and he gave it to all his ministers and everybody. And he says, my chain, Sukh chain, my all happiness is gone till I can find this Krishna, this form of Krishna who appears in my dream every day. I want to worship him personally. So please go and at any cost find him and bring him to me. So everybody left. And he says, I will not enjoy my life till he comes and I get to worship him. I'm saying this in a very shortcut because there is so many things to be said. So a lot of ministers went everywhere. They couldn't find this Nil Madhav anywhere. So they all came back. Some came back after a year, some came back after 6 months, some came back after a month. They all went in all directions. There was one minister, his name was Vidyapati. Vidyapati also went searching. After a year or so, he came to a village and he was still searching. But there was a tribe called Sabara.
Sabara, there's a Bhil Jati, Bhil, Adivasi, the jungle people. So there was a Sabara tribe in Orissa. He came to that place. And this king also was from Orissa. So he came to that place and he was searching for Nilmadhav. So he stayed in that place. So the chief of the village was out of town on a business something. His daughter was received Vidyapati and somehow she served him very nicely. So Vidyapati liked her very much. The daughter also liked Vidyapati. So when the father came back, Vidyapati told that your daughter served me very nicely and I am unmarried. I like your daughter very much. Can you give her hand in marriage to me? And I am a minister such and such place and so on. So he said okay. So they got married. So after marriage, it was a custom that he lives sometimes at his in-laws' house. So he was staying there before going back home. He saw that the king, as the chief or the father of his wife, used to go out every night somewhere and come back in the morning. And when he would come back in the morning, he would be so fragrant. Very nice smell would come out of it, like agru, chandan, all this thing. So after some days, he asked his wife that, where does your father go? I'm very inquisitive because when he goes there, he's nicely dressed, he takes a bath and he goes. And when he comes back, he's smelling so nice. It feels like he's such a divine person when he comes back. What happens? So the wife says, since you're my husband, I cannot hide anything from you. So I have to tell you, since you asked me. This is the art of hiding. So if somebody says you have to not tell this to anybody, then of course you don't tell anybody. But when asked, then satyam vacha, you have to say the truth also. So unless ask, I will. But अभी होता क्या है, बोलने की बहुत इच्छा हो जाती है कि नहीं मुझे कुछ पता है मैं कैसे बता. So somehow we bring that topic up. So that topic comes up, then that person will ask you. Now I can tell you everything. So somehow this Vidyapati asked her. So now she said, I have to tell you. So she said, there is a nice vigraha of Krishna out in the jungle. And my father goes and worships him at night. And a lot of Devi Devtas also come to worship him all the night. So that is where he goes. So he says, can I take a darshan? So she said, I can ask my father. So they asked, अब जमाई को कौन ना बोलेगा? बेटी को भी खुश रखना है ना. So he said, okay, I can take you. But he knew that he was in search of somebody, like some Krishna, vigraha. So he says, I cannot show you where exact location. So he tied his, blindfolded him. But when he blindfolded him, he says, I'll take you blindfolded, you take darshan, I'll bring you back blindfolded. So you don't know where the existence is. So he took some mustard seeds with him. This guy is intelligent. And so as he's sitting on the cart, the Sabara king is driving the cart, he's sitting behind, and he's slowly dropping the mustard seeds. Because in monsoon season, the mustard seeds will grow and he can find his way using the mustard. They have very distinct yellow flower. And mustard seeds, mustard plant don't grow unless they have been sowed someplace. It's not like a wild flower which will grow in a jungle. Kheti karni padti hai uski, right? So he was throwing mustard seeds. So finally he reached, opened the blindfold, and exactly as King Indradumna had described, it is the same Nilmadhav Bhagwan. So he's astonished to see the mercy of Nilmadhav. Okay. And at that time, the Sabara king is performing the puja. There is a lake next to it. And he sees that in a lake, a crow was flying over the lake and he fell down in the lake because it was time for him to leave his body. As he fell down in the lake, he came out with a beautiful four-handed form like a Vishnudut. And he rose. So he was thinking, wow, what is the potency of this Thakurji? That a lake next to it, if somebody dies in that lake, just by the potency of Bhagwan Nilmadhav, anybody can become like a four-handed Vishnudut. So he said, my dear father-in-law, I came to search for this Nilmadhav. I have to take him back. So the father says, no, I cannot allow you to take him back. So he does not allow Vidyapati to take Krishna back. It's a long story what happens in the middle. But somehow, Nilmadhav is also not very happy that he has to now live here. Okay. So eventually Vidyapati is able to go back home to the king's place and he tells the king that I have found the deity of Nilmadhav. Let's go, I will show you where it is. So the king with his procession comes, and if they follow the mustard seed trail and they go to the cave where Nilmadhav is worshipped. When they reach the cave, there is no Nilmadhav. So now the king is heartbroken that I came so far, now the Nilmadhav is gone. The Sabara king is also heartbroken that my dear Lord whom I used to worship every night is gone. What happened?
That night, Nil Madhav appeared simultaneously in both of their dreams. And he says, please don't lament. I'm very happy with the service you performed. But that was the only reason word. And Brahman means Bhagavan. So I'll appear in the form of a wooden Bhagavan. And at that time, O King Indradumna, you can worship me personally. And Ho Sabara King, because you served me so much, I will give you a boon that you will have the honor of carrying me once a year, and when my Rath Yatra happens, you will have the first worship of me every time because you worship me. So don't be heartbroken, I'll come back in your life again. So after that, King Indradumna went back to his house. Sabara king went back to his house. But he told his family that this is going to happen sometime. So the king built a beautiful temple for Lord Nil Madhav in Jagannath Puri on a top of a hill. And that temple, that place is called Purushottam Kshetra. Purushottam is the Supreme Personality of Godhead. Kshetra is where he lives. Okay. But Krishna was not coming as the wood deity as he promised. So King Indradumna got worried what to do. So he went to see Lord Brahma at that time. Now everybody knows the Einstein's theory of relativity, right? That the time as you go upwards in the universe gets slower and slower and slower and slower and slower, and then it comes to a stop. Beyond this universe, there is no concept of time. Time is only found in the material world. This is not just written in Srimad Bhagavatam or our Shastra, but even proven by Einstein now. So, by the theory of relativity, E is equal to mc square and so many other things. So, one day in Brahma's lifetime, one day of Brahma or 12 hours of Brahma is equal to 4.8 billion times 1,000 years of human calculation. Okay, so when King Indradumna went to see Brahma, Brahma saw him and spoke to him. He says, "Why is Krishna not coming? I have built a temple. Why don't you come to Purushottam Kshetra and invite Krishna and establish Krishna in the temple?" So Brahma says, No. Krishna is the Supreme Lord. He'll come on his own will. He told you he'll come. Don't worry about it. Go back home and just wait for him. So only 5-minute talk they had. But since he traveled and stayed 5 minutes, now Kali is 432,000 years. Okay? 430. Our life is only 80 years. Kali span is 432,000 years. Treta Yuga is, Dwapar Yuga is double, Treta Yuga is 3 times, Satya Yuga is 4 times. One Yuga cycle is made of Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. That is 4.3 lakh or 432,000 times 10. Right? So 4.3 million years is one Yuga cycle. Like that, 1,000 Yuga cycle is equal to 12 hours of Brahma. So can you imagine 5 minutes of Brahma is how many thousands of years here on the earth? So when Indradumna spoke with Brahma for 5 minutes, by the time he came back, his generations had passed away here. Right? Nobody even recognizes King Indradumna anymore. The temple that he had built is in ruins. So he's dejected to see all these things. So the existing king, he tells him the story that I'm King Indradumna. I had gone to see Brahma and so on. So when Brahma has told me to wait for Krishna to come, one day King Indradumna gets a dream that tomorrow morning in Purushottam Kshetra Jagannath Puri, there's ocean next to it. You will see 3 big logs of wood washed away, and that is I coming in the form of a wood. Krishna told him that. Next day morning, King Indradumna wakes up and makes a big kirtan party. He goes to the ocean and he sees 3 big logs of wood floating on the ocean. He asks his Sainik to go out and fetch them out of the ocean. They cannot even move it. So then he brings elephants and elephants to move them. They cannot even move. King Indradumna then finally put his head at the lotus feet. And these are just logs of wood, like tree trunk. And he says, "Can you please move? We want to serve you." So at that time, Krishna appeared to him and he says that you have to find an appropriate sculpture. Now by my mercy I will move and I'll come to your palace, and then you have to find an appropriate sculptor and he'll make a nice vigraha out of this wood and you worship this vigraha. So the king finally brought these 3 pieces of wood into his palace. Now he invited all the sculptors from all over the world to come and make the sculpture out of this. Anybody who would come and would try to, with a chisel and hammer, try to sculpt him,
his chisel would break down into 1,000 pieces all the time. So many sculptors came because this is like a divine thing. The king will reward them highly. अगर ओबामा बोल दे कि मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया है, कोई भी आके फिक्स कर दो, जो भी फिक्स करेगा उसको मैं न्याल कर दूंगा, सभी लोग जाएंगे, अरे हम भी फिक्स कर सकते हैं, हम भी फिक्स करते हैं, हमको ट्राई करने दो, राइट. ओपन हाउस है, तो इधर ओपन हाउस था कि भगवान की सेवा करने को मिलेगी और कि राजा प्रताप रुद्र बहुत धन भी देगा. बहुत सारे लोग आए, सबका वो जो चीजल होता है वो टूट जाता था. फाइनली विश्वकर्मा was an engineer of Devta. He came himself disguised as an old sculptor. And he started sculpting and his chisel did not break. So the king says, yes, you can make this deity, the Thakurji, Vigraha out of this. So what do you need from me? Tell me. तो बोलता है, देखो king, I don't need much from you. I need privacy. हमारे वहाँ भी कोई काम करने के लिए घर पे आता था, इतना टिक 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 इसको ऐसा देख के खड़ा रहा, अरे ये ठीक से करो, वो ठीक से करो, आई डोंट वांट एनी टिक टिक. अपने को पता भी नहीं है ना वुड वर्क कैसे करना है, पर वो जो सुधार आएगा काम करने के लिए तो उसके ऐसे ही खड़ा रहेंगे. और अगर वो हस्बैंड उसको छोड़ के कुछ करने जाएगा तो बीवी डांटेगी, अरे देखना चाहिए वो कैसे करता है, तुम्हारा अच्छा वाला वुड छोड़ के किसी और का वुड यूज कर लेगा, ये वो अच्छा मटेरियल यूज नहीं करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा, यू टेक केयर ऑफ हिम. तो बोलता है, आई डोंट वांट एनीबॉडी सुपरवाइजिंग मी. Give me one room, I'll close myself in that room. Give me 21 days. After 21 days, I'll come out and your Thakurji will be ready. King said, okay. So he started, but अब king है, there is curiosity क्या हो रहा है. तो हर रोज आके ऐसे वो सुनता था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो हर रोज he can hear tuck 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 inside. Day and night Vishwakarma is working. On the 14th day, the king comes. ऐसा सुन रहा है, there is no sound coming. 5 मिनट के बाद वापस आता है, स्टिल नो साउंड कमिंग. 1 घंटे के बाद वापस आता है, स्टिल नो साउंड कमिंग. He's telling his wife, something गड़बड़. That guy was old anyway. He hasn't eaten in 14 days. वो झटपट ऑमलेट ना हो गया हो, कि क्या पता मर वर ना गया हो, कुछ भी तो अपने देखना पड़ेगा ना. उसमें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा है. So but the queen said, no, please don't open. He told us not to open the door. He says, no, I cannot. I am very curious what is going on. So finally in the evening of the 14th day, he opens the door. There is nobody inside. There are 3 pieces of wood in unfinished situation, looking just like this. There is a big head, a big trunk, but no hand, no legs, nothing. Now the king is crying that I made an offense. He told me to wait 21 days. It is as if अपनी बीवी प्रेग्नेंट है, 9 मंथ डॉक्टर ने बोला है, पर अब 6ठे महीने भी बेटे को खिलाने का इच्छा हो गया, नहीं होना चाहिए. अब 6ठे महीने में बेटा जितना फॉर्म है उतना ही फॉर्म है ना. उसका हाथ पैर ठीक से फॉर्म नहीं है, आंख भी ठीक से है नहीं. तो ऐसा ही जगन्नाथ का था. In 14 days that was only shape he had. King started crying. So then again Jagannath appeared in his dream. He says, please king Indradumna, don't cry. This is all by divine arrangement that is happening. I wanted to appear in this form without hand and legs. And I will honor your service so much that people will see that even though I don't have legs, I am moving. And even though I don't have hands, I am eating so much. You will see that. And you will see me doing so many pastimes. Because people think that I don't have hand and legs. I am Nirakar. So I want to show them that I don't have material hand and legs like you have. But I have divine hand and legs. And I will manifest my hand and legs from time to time. And show you so many pastimes. But if you feel that my body is incomplete, then sometimes for a festival, out of gold you can make hand and legs for me and you can attach. So Jagannath ko dekhenge. See this Jagannath, you can come closer and see some after the program. His hand is only this much, इतना ही कटा हुआ hand है. कभी कभी इंडिया में देखते हैं ना, वो हम ठूठा बोलते हैं उसको, हाथ कट गया है, खाली इतना ही है. रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ बच्चन. इंडिया में दिखाता है पिक्चर्स में, एक स्लीव नहीं पहनेगा, वो हाथ पीछे रखेगा. तो ऐसा है जगन्नाथ जी का हाथ इतना कटा हुआ है. पैर तो बिल्कुल नहीं है, खाली टॉर्सो ही है, इतना ही है. तो बोला मेरे ऐसे ही सेवा करो. और once a day in a year you take me out for Rath Yatra. See, this Jagannath is so merciful. He is here to relieve each and everybody from their sinful life. जो भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है भगवान के धाम में जाता है. भगवान ने इतना वरदान दिया है. तो बोलता है कि हे राजा, मैं तेरे घर आके रहूंगा और मैं सबको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेशली कलयुग में लोग बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, बहुत अपराध करेंगे, मेरे से दूर रहेंगे. इसलिए
हाँ, मैं बहुत करुणामयी रूप में तेरे पास आकर रहना चाहता हूँ, तो मैं यही स्वरूप में रहूंगा, सबको बहुत आशीर्वाद दूंगा और सबके साथ मैं पर्सनली रेसिप्रोकेट करूंगा। आई वांट टू रेसिप्रोकेट पर्सनली विद इट, बट फिर भी पीपल विल नॉट कम इन द टेम्पल टू सी मी। तो राजा बोलते ठीक है, मैं आपका टेम्पल खाली 3 घंटा ही क्लोज होगा ऐसा प्रबंध कर देता हूँ। यू स्टे अवेक फॉर 21 आवर्स। इवन टुडे जगन्नाथपुरी टेम्पल 21 आवर्स इट इज ओपन। एंड बोलते कि भगवान आप इतना खाइए मेरे टेम्पल में कि आपके हाथ कभी सूखे नहीं। माने अभी खाया हाथ धोया दूसरा प्लेट आया, अभी खाया हाथ धोया दूसरा प्लेट आया, अभी खाया हाथ आया। जगन्नाथ जी को 32 पकवान कम से कम 16 से 18 बार दिन में लगता है। कॉन्स्टेंट कुकिंग, 1 टन राइस इज कुक्ड इन जगन्नाथपुरी एवरी डे। यानी इमेजिन 1 टन राइस जगन्नाथपुरी में कुक होता है। और भगवान को कॉन्स्टेंटली, देयर आर 15-20 ब्राह्मणस who constantly their job is to take thal, big thal from the पाकशाला to the temple और and bring back. कॉन्स्टेंटली उनका आना जाना चालू ही रहता है। भगवान जगन्नाथ इतना खाता है और इतना खा के सबको अपना प्रसाद देते हैं, और प्रसाद जो जगन्नाथ जी का खाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जगन्नाथ जी ने कहते हैं कि मेरा मर्सी पूरा मैंने प्रसाद में डाल दिया है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि एकादशी के दिन हम अनाज नहीं खा सकते, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना अलाउड है। अगर आज एकादशी है, कोई बोले घरे मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ, और जगन्नाथ जी का मेन प्रसाद है भात, राइस, क्योंकि उड़ीसा के लोग राइस बहुत खाते हैं। ठाकुर जी भी उड़ीसा के हैं, तो राइस बहुत है, 1 टन राइस खाते हैं। वही सब राइस सबको बांटा जाता है, दाल सब्जी सबके साथ। तो सूखा हुआ राइस मिलता है वहाँ पे। तो जो भी जगन्नाथपुरी जाता है सूखा हुआ राइस लेके आता है। फिर भी कभी भी आप जगन्नाथपुरी में है, इंडिया में है, यहाँ पे भी है, जगन्नाथ जी का प्रसाद बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो कितना भी एकादशी है आपने खा लिया, आपका एकादशी नहीं टूटता। शास्त्र में लिखा हुआ है। तो राजा ने बोला कि आप इतना कृपा करेंगे, फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जो आपके मंदिर आएंगे ही नहीं, उनके बारे में क्या करेंगे? तो जगन्नाथ जी बोलते उनके लिए मैं दिन में, साल में 1 बार बाहर खुद निकलूंगा और स्वयं उनके पास जा जाके उनको अपना दर्शन दूंगा। जो भी मुझे 1 बार भी देख लेगा, हाँ, वो मेरे धाम में आएगा, उसमें मेरी, उसके हृदय में मेरी भक्ति स्थापित हो जाएगी। अब सोचिए, जगन्नाथ जी को 1 बार देख लिया, अभी हमको लगता है कि ये क्या नॉनसेंस है, मैं तो जगन्नाथ जी को बहुत बार देखा, फिर भी कुछ भक्ति तो हृदय में है नहीं। पर आपको ये फेथ का सवाल है। जगन्नाथ जी कहते हैं कि मुझे 1 बार जिसने देख लिया, उसके हृदय में मेरी भक्ति स्थापित हो जाती है। अब स्थापित हो जाने पर उसको डेवलप होने में तो टाइम लगता है ना, हाँ, पर डेवलप होगा। 1 बार देखने से स्थापित होता है। अगर पर्सनली सेवा किया तो डेवलप भी होना चालू हो जाएगा। और उनका प्रसाद हर रोज खाया, पर्सनली सेवा किया तो बहुत जल्दी स्थापित भक्ति डेवलप होके इट विल ब्लूम एंड ब्लॉसम। सो दैट इज व्हाई जगन्नाथ रथ यात्रा हैपेंस वंस इन अ ईयर, बट जगन्नाथ जी कम्स आउट। ब्रिटिशर्स wrote that it is amazing that nobody sends any invitation to anybody फिर भी कहाँ से millions and millions of people come to जगन्नाथपुरी, और सबका खाने का प्रबंध होता है वहाँ पे, कोई भूखा नहीं सोता वहाँ पे, मंदिर में से खाना मिलता है सबको, and they all go back also। बोलते हैं this is the most amazing thing in the world। और जगन्नाथ cart is like many stories high, every year a new cart is made in जगन्नाथपुरी। Jagannatpuri is nearly 8 to 10 feet tall। When you go him, when people stand next to him, they look like this big in front of him। And next time when I come, I'll show you some videos also of Lord Jagannath, how he is carried out from the temple and so on। It is relayed live in India through Jagannatpuri। इंटरनेट पे भी दिखता है लाइव, आप देखिएगा 10 जुलाई को। तो जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं और कहते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो भी उनका कार्ट खींचता है उसको राधा रानी स्वयं भगवान की भक्ति दे देती है, स्वयं। ये क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रथ यात्रा है, ये जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी ही केम एंड ही गॉट एस्टैब्लिश्ड इन जगन्नाथपुरी, ओके, एंड ही इज बीन सर्व्ड। उसके बाद बहुत सारे लोग आए। सो अराउंड 7th century देयर वाज अ demon king, his name was Raktabahu, 7th century अभी। So he came and he wanted to attack Jagannathpuri। ये मुसलमान लोगों को ये बहुत होता है कि नहीं, हिंदू लोगों के विग्रह उसको तोड़ो। तो he wanted to attack Jagannathpuri। So Jagannath ji came in a dream of a Pandit and he told them that even though I can defend myself, there is not a problem, but just to enact pastimes, please hide me from this Raktabahu and take me to Bengal। बंगाल में मुझे ले चलो।
तो ये साबरा लोग जो सेवा करते थे ना, विद्यापति की वाइफ की जो फैमिली के थे, उन लोगों को बुला गया. दे कैरीड लॉर्ड जगन्नाथ थ्रू द जंगल. आफ्टर 12 days they reached to Jagannath, to Bengal. There is a small island called Simant Dweep. That's where he reached. और वहाँ जाने पर जगन्नाथ जी ने सपना दिया कि अब मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ से कहीं जाना नहीं है. So Jagannath started living in Simant Dweep. Okay. In Simant Dweep, he was being worshipped regularly by the Brahmanas. After some time, as the time progressed, उनकी worship वहाँ पे भी down हो गई. The whole temple also broke down. All the Brahmanas also went away. Okay. Now I'm fast forwarding. अभी भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है, पर अब मैं सीमंत द्वीप की कथा करना चालू किया मैंने. 16th century when Chaitanya Mahaprabhu was there, 400 years ago, there was a devotee named Jagdish Ganguly. Jagdish Ganguly used to go to Jagannath Puri for Rath Yatra every year because Chaitanya Mahaprabhu was there. As he was getting old, due to disease, his eyes went away. He was blind. So now he cannot walk to Jagannath Puri. So he was crying every day that, oh Lord Jagannath, I'm a wretched soul. मेरे बहुत दुख हो गया, अब आपका दर्शन भी मेरे से चला गया. मैं ऐसे ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, खाली आपका दर्शन का धन था मेरे पास. अब मैं अंधा हो गया तो मैं हो भी आपका दर्शन करने नहीं आ पाता. मैं क्या करूँ करके रोने लगा. वो रोने लगा, बहुत रोता था. एक बार ऐसा ही रोते रोते वो सुबह उठ के नहाने जा रहा था. उसका सर टकराया एक पेड़ के साथ. सर टकराया और नीचे गिर गया, बेहोश हो गया. बेहोशी में उसको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए कि हे ब्राह्मण, तू चिंता क्यों करता है, मैं यहीं तेरे पास हूँ नज़दीक में. तू जगन्नाथपुरी नहीं आ सकता तो मैं जगन्नाथपुरी से तेरे पास आऊँगा, तेरे पास रहूँगा. आज तू स्नान करने जाएगा, हाँ, तेरे को एक लकड़े का पीस मिलेगा, वो पीस तू ले लेना लकड़े का. हाँ, और अमुक गांव में एक रक्तपीत स्कल्पचरर है. रक्तपीत समझते हैं, जिसका हाथ पैर सब रक्तपीत, लेप्रेसी बोलते हैं उसको. लेप्रेसी के कारण उंगलियां सब गल जाती है. तो एक स्कल्पचरर पर उसको लेप्रेसी हो गया है. उसको जाके बोलना कि ही हैज टू कार्व मी आउट ऑफ दिस, और वो मना करेगा. पर somehow it is your job to convince him. If he is convinced, then I will come through this piece of wood. तो बोलता है कि मैं तो अंधा हूँ, मैं आपको कैसे कैरी करके जाऊंगा. तो बोलता है ठीक है, तेरी आंख अभी तो उठेगा, तेरी आंख वापस आ जाएगी. जगदीश गांगुली woke up, his eyes came back. When he went to the river to take bath, he saw a big piece of wood. Somehow Jagdish Ganguly carried the piece of wood, directly went to that village, went to that sculpturer. He says, प्रभु जी, मुझे सपना में जगन्नाथ जी ने कहा है कि आपको मूर्ति. तो बोलते मेरा हाथ देखते हैं. हम लोग छोटे थे तो मजाक में ऐसा करके ऐसा भीख मांगते हैं ना, ऐसा हाथ होता है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं उनको. बोलते यू कैन लुक एट माई हैंड्स, आई हैव नथिंग, आई कैन नॉट स्कल्प, मैं हथौड़ी कुछ भी उठा नहीं सकता. तो बोलते नहीं, जगन्नाथ जी ने बोला है दैट तू अग्री करोगे तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा. फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड. सो ही सेज ओके आई विल ट्राई. तो जैसे तैसे करके वो हथौड़ी उठा के उसने काम करना चालू किया. जैसे जैसे काम करता गया उसके हाथ पैर सब ठीक होने लगे. फाइनली उसने जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया. अब जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया, जहाँ पे वो जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी आए थे ना सीमंत द्वीप में, वहीं पे वापस मंदिर बना और वहाँ पे वो जगन्नाथ जी रखे गए सेवा के लिए. उसके बाद रात को जगदीश गांगुली को वापस जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया और कहा कि अभी कहीं और से 2 और लकड़ी ले आ और बलदेव और सुभद्रा का भी विग्रह बना, उन्हीं से बनवा और मेरी सेवा कर. जगदीश गांगुली तीनों की सेवा करने लगे. सेवा करते करते उनका बहुत दुर्बल हो गए तो उनका देह चला गया. उनके पुत्र लोग सेवा करने लगे. धीरे धीरे उनके फैमिली में भी प्योरिटी चले जाने लगी. होता है ना, बाप बहुत रिलीजियस है, बेटा उससे थोड़ा कम है. धीरे 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 वो चला गया. अब उसकी फैमिली में कोई सेवा नहीं करता था जगन्नाथ जी का ठीक से. सो जगन्नाथ बिकेम अनहैप्पी. सो ही गिव देम अ वार्निंग दैट यू आर निग्लेक्टिंग मी सो मच. सो फ्रॉम टुमारो यू बेटर स्टार्ट सर्विंग मी प्रॉपरली और आई विल किल यू ऑल. ही वाज सो एंग्री ऑन दैट. इट इज जस्ट अ पास टाइम. भगवान के हाथ से मरना भी तो सौभाग्य की बात है. तो भगवान चाहते थे कि ये जगदीश गांगुली ने मेरी इतनी सेवा करी, उसका परिवार का मैं कुछ अच्छा करूं. पर दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ इट. So the epidemic of cholera broke in that village. Village का नाम है राजापुर. And everybody died in that village. And वो जगन्नाथ जी का जो मंदिर था again went into the ruins. And there was a big termite hill. उधे का जो हिल होता है वहाँ सांप रहने लगे, सब कुछ हो गया. तो पर वहाँ पर सुंदर पुष्प खिलते थे हमेशा. और कभी कभी गांव वाले वहाँ से जाते थे, वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई देती थी तो उनको लगता था भूत भूत होगा कुछ, यहाँ पे हमको जाना नहीं है. Now I'm fast forwarding 1957. There is a devotee
मैं उसका नाम भूल गया हूँ। उसका साथ एक दोस्त था प्रदीप चटर्जी करके, और वो डिवोटी का मैं नाम भूल गया। वो वहाँ से जा रहा था रात, एक गांव से दूसरे गांव, अपने गांव चल के जा रहा था। तो गंगा नदी है, उसको गंगा नदी क्रॉस करना था। तो गंगा नदी क्रॉस करने के लिए जा रहा था। वहीं पे राजापुर के पास से वो निकला, तो ये बड़ा टर्माइट का हिल था। वहाँ से उसका आवाज़ सुनाई, अरे कोई मुझे बाहर निकालो, अरे कोई मुझे बाहर निकालो। तो उसने सोचा कि भूत भूत होगा, मतलब उसको बहुत डर लगा, तो जल्दी जल्दी चलने लगा। तो इतने में बाम्बू होता है ना जंगल में, तो एक बाम्बू का पेड़ ऐसे ही सीधा उसके सर पे आकर गिरा। तो उसको तो लगा अब सच्ची में यहाँ पे भूत है। वो तो बेहोश हो गया, भगवान का नाम लेने लगा। तो भगवान बोलते हैं, अरे तू चिंता मत कर, मैं ही तुझे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट रन, ये टर्माइट हिल में मैं हूँ, मुझे बाहर निकाल, मैं बहुत दिनों से इसमें डटा पड़ा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। जगदीश वो जो आदमी था वो तो इतना डर गया, बोलते हैं देखो मुझे पता नहीं है तुम भगवान हो, मुझे तो भूत जैसा लगता है, अगर आप भगवान हैं तो मुझे जल्दी मेरे काका के घर पे पहुंचा दीजिए गंगा पार, उसके बाद अगर मुझे पहुंचाया तो मैं सोचूंगा तुमको हेल्प करने की। तो भगवान बोलते हैं चल ठीक है। उसको पकड़ के सीधा अपने काका के घर पहुंचा दिया। तो उसको लगा कि अरे मैं इतना जल्दी गंगा पार करके आ गया, नक्की भगवान ही होंगे। उसका एक दोस्त था प्रदीप चटर्जी करके, उसको उसने बुलाया। प्रदीप चटर्जी अभी भी अलाइव है। प्रदीप चटर्जी को बुलाया, प्रदीप चटर्जी को बोला कि हाँ ऐसा हो गया है, मुझे हेल्प कर, मुझे अकेले जाना बहुत डर लगता है। सो ही एंड प्रदीप चटर्जी वेंट टू दैट प्लेस। वहाँ सांप बाप सब थे, कैसे कैसे करके उन्होंने खोदा, वहाँ से खोद के जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा का विग्रह बाहर निकाला। वो आप सोचिए 16th सेंचुरी, 400 साल पहले जो डट गए थे वहाँ, जगदीश गांगुली सेवा कर रहे थे, वही विग्रह, उसके ऊपर टर्माइट था। टर्माइट तो उधे बोलते हैं टर्माइट को, वो तो वुड ही खाती है। फिर भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ा बलदेव सुभद्रा की बॉडी को हुआ था, वो बाद में फिक्स कर दिया। उसकी सेवा जगन्नाथ जी बोलते कि यहीं पे मेरा मंदिर बनाओ वापस और मेरी सेवा चालू करो। तो मंदिर तो क्या, एक छोटा सा झोपड़ा बना दिया, वहाँ पे से जगन्नाथ जी की सेवा चालू हो गई 1957 से। 1957 से प्रदीप चटर्जी की फैमिली सेवा कर रही थी टिल 1979। 1979 में प्रदीप चटर्जी बिकेम ओल्ड and his children also were not able to serve very properly. So they contacted ISKCON मायापुर। मायापुर में ISKCON का मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप लोग अब इस मंदिर की सेवा हाथ में ले लीजिए। तो ISKCON मायापुर वालों ने मंदिर की सेवा हाथ में ले ली। तब से आज तक वो जगन्नाथ जी की राजापुर में ISKCON वाले सेवा करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा पास टाइम सुनाता हूँ। तो जब ISKCON की सेवा चालू हुई तो 10-15 किलोमीटर का रास्ता होगा ISKCON मंदिर से ये राजापुर जगन्नाथ जी के मंदिर का। तो ISKCON में जो भोग लगता था भगवान को, वही भोग साइकिल पे एक पुजारी आता था और यहाँ जगन्नाथ जी को भोग लगाता था। तब वो जो ब्राह्मण था वो सोचने लगा कि अब वहाँ से हर रोज़ साइकिल लेके आना, 20 किलोमीटर वापस जाना, ये है वो है, उससे अच्छा मैं यहीं कुकिंग करके अब भगवान को भोग लगाना चालू करता हूँ। तब उसने बोल दिया अरे आप मत आया करो, मैं यहाँ कुकिंग चालू करूँगा। सो ही स्टार्टेड कुकिंग। नेक्स्ट डे कुक तो किया, कुक करके जगन्नाथ जी को भोग लगाया। तो जगन्नाथ जी को इतना मज़ा नहीं आया खाने में। उस दिन रात में पुजारी के सपना में आया, उसका गला पकड़ लिया, बोले आलसी आदमी, तेरे को इतना तकलीफ होता है वहाँ से खाना मंगवाने में, वहाँ कितना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना पकता है और तू यहाँ हमारे को खिचड़ी चपाटी खिलाता है। कल से अगर मुझे वहाँ से खाना नहीं मिला तो तुम्हारा सब कुछ खैदान मैदान कर दूंगा। वो तो डर गया, एकदम खड़ा हो गया। उसने वहाँ पे सीधा बोला कि आप कुछ भी करो, कल से खाना वापस यहाँ वहीं से आना चाहिए। आज भी वहाँ से खाना आता है खाना। थोड़े साल पहले ही जगन्नाथ जी ने अलाउ किया कि आप अगर ऐसा ही क्वालिटी का खाना यहाँ पे बनाओगे तो मैं अलाउ करूँगा यहाँ कुकिंग करने का। तो वहाँ इतना सुंदर खाना बनता है राजापुर में, आप जिसको जाना चाहिए। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँगा, तो मेरे पास प्रेजेंटेशन में है। तो ये जगन्नाथ जी रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ, है ना। और रथ यात्रा इज अ स्पेशल इवेंट वेर ही कम्स आउट टू शो द मर्सी। सो वाई रथ यात्रा, ओके, एंड वाई दिस फॉर्म ऑफ जगन्नाथ, बिग आईज, this kind of short hands, short legs? So I'll tell you the reason why. When Krishna was living in Dwarika, he had left Vrindavan for many years now. But he still would remember Nand Baba, Yasoda Ma, Radharani, all the gopis. At night he would wake up, crying, Hey Radhe, Hey Radhe, Hey Ma Yasoda, Hey Nand Baba. तो रुक्मणी, सत्यभामा सब रानियाँ थी, वो सोचती थी अरे भगवान ये रात को उठ के किसी और लड़की का नाम लेके रोते हैं, अपनी माँ को याद करके रोते हैं। उसकी माँ तो यहाँ पे है, देवकी वसुदेव सब, फिर भी कहाँ यशोदा को याद करते। यशोदा तो खाली 11 साल उसका टेक केयर किया। ये गोपियों को याद करते हैं, गवार गोपियाँ सब गांव की,
उन्होंने क्या सेवा करी है भगवान की, हम लोग उनकी इतनी अच्छी सेवा करते फिर भी ये क्यों रोते रहते हैं उनके लिए हमेशा। तो माँ रोहिणी से जाके मिलता है कि माँ रोहिणी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द रीजन कृष्णा वेक्स अप एट नाइट एंड ही क्राइज कॉलिंग आउट यशोदा, नंद बाबा, हे गोप सखा, हे गोप स्त्री, हे गोपिया, हे राधा रानी, हे चंद्रावली, ये सब ललिता, हे विशाखा, ये सब नाम लेके क्यों रोता है। सो माँ रोहिणी सेज, ओ फॉर दैट आई हैव टू टेल यू द वृंदावन पास्ट टाइम्स, वृंदावन की लीला तुम्हें बतानी पड़ेगी। पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं तुमको वृंदावन की लीला बता रही हूँ और अगर जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने या बलदेव ने उसको सुन लिया तो अपनी सूद बूद घुमा देंगे, वो पागल हो जाएंगे, उनको सब याद आ जाएगा और पागलपन में वो भाग जाएंगे वृंदावन। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दे डोंट लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो बोलते ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम कल बाहर जाने वाले हैं तो कल हम प्रोग्राम करते हैं ये लीला सुनने का। और सुभद्रा जो उनकी छोटी बहन है उसको बोलते हैं कि देख तू सबसे छोटी है, घर में सब बुरा काम छोटे बच्चे को दिया जाता है। तो सब रानियां बोलती है देख सुभद्रा तू सबसे छोटी है ना, तू दरवाजे के पास खड़ी रहे और देख जैसे ही कृष्ण बलराम को आते देखेगी तो हमको बोल देने का, इशारा करने का, तो हम लोग ये सब बातें बंद कर देंगे यहाँ पे। तो बोलते ठीक है। तो सुभद्रा खड़ी रहती है दरवाजे पर ऐसे हाथ करके कि कोई अंदर घुस ना जाएगा, छोटी बच्ची है ना। तो और इधर सब रानियाँ 16,108 रानियाँ माँ रोहिणी के चरण कमल में बैठती है, माँ रोहिणी को ऊंचा आसन में बैठाते हैं कि माँ रोहिणी आप तो वृंदावन में रही है इतना साल कृष्ण बलराम के साथ, तो आप बताइए उन्होंने क्या क्या किया, गोपियों के साथ क्या लीला है। माँ रोहिणी सब वृंदावन की मधुर लीलाएं डिस्क्राइब करना चालू किया। सभी उनके आंख में से पानी आ रहा है, सभी रानियों के आंख में से पानी आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि कितना प्रेम करते थे व्रजवासी कृष्ण से, हम तो क्या करते हैं। अब उतने में कृष्ण बलराम वहाँ से आए, बाहर से आए, पर सुभद्रा भी तो स्टोरी सुनने में इतनी मस्त हो गई थी, वो भी भूल गई कि मुझे दरवाजा वॉच करना है। कृष्ण बलराम बाहर से आ गए और उनके कान में व्रज की लीला पढ़ने लगी, पास्ट टाइम्स ऑफ वृंदावन। वो लोग अपनी सुधबुद्ध खो बैठे, दे वेंट इन एक्सटेसी। तो कभी कोई एक्सटेसी में जाता है ना तो कंपन 8 प्रकार के विकार आता है उसके शरीर में। हम लोग ने तो देखा ही नहीं क्योंकि हमने एक्सटेसी नहीं देखी है, पर ऐसा कंपन और आंख बड़ी हो जाना, आंख में से अश्रु निकलना, बड़ा सा स्माइल मुख पे आ जाना और कंपन की वजह से हाथ और पैर टर्टोइस की तरह शरीर में चले जाना। कभी कभी कंपन की वजह से हाथ और पैर खींच के इतने लंबे हो जाते हैं कि ये सॉकेट से टूट के बाहर निकल जाते हैं और फिर उसको वापस बिठाने पड़ते हैं। पर ये इस बार कंपन में हाथ और पैर ऐसे अंदर चले गए उनके और वो गिर गए बेहोशी की स्थिति में। ऐसे उनके आंख बड़ी बड़ी हो गई, आंख में से पानी गिर रहा है, कान ये बड़ा स्माइल खुशी के मारे, बिग स्माइल, hand and legs they went into his body and they were lying like this unconscious. And Subhadra bhi in that state of ecstasy she was also lying like this unconscious. तो उतने में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि देखते हैं भगवान का ये सुंदर स्वरूप। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान आपके बहुत स्वरूप देखे पर इतना सुंदर स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, प्रेम से विह्वल है ना। अगर किसी बच्चे का हम फोटो लेंगे, when he is very happy we want to take that photo and put it on the wall so we can see his very happy state all the time. So this is the very happy position of Krishna. जब वो इतने आनंद में है कि अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं अपनी लीला सुन के, गोपियों की लीला सुन के। तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा आपका विग्रह कहीं पे स्थापित होना चाहिए हे भगवान। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जगन्नाथपुरी में मैं ऐसे ही विग्रह के रूप में रहूँगा। इसलिए भगवान यही स्वरूप में जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। बड़ी बड़ी आँखें, इतना बड़ा स्माइल, हाथ पाँव शरीर के अंदर चले गए हैं और हाथ ऐसे ही है जैसे अभी अपने को अपनी बाहों में पकड़ लेंगे, इस तरह हाथ ऐसे हैं उनके। तो ये जो स्वरूप है भगवान का, बहुत उत्तेजित अवस्था का स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। आँख ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी आँखें हैं भगवान की, कितना बड़ा स्माइल है सुभद्रा का, जगन्नाथ जी का, बलदेव का, सब डिफॉर्म्ड हो गया भगवान, है ना। और रथ यात्रा क्यों निकलती है? तो भगवान एक बार ग्रहण होने वाला था। जब ग्रहण होता है, आजकल तो कोई पालन नहीं करता, पर ग्रहण एक्लिप्स इज सपोज टू बी वेरी इम्पायस। तो सब कहीं भी छूना नहीं होता जब ग्रहण होता है घर में, और फिर स्नान करना होता है जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद। तो लोग तीर्थ क्षेत्र में जाके स्नान करते हैं। तो भगवान, कुरुक्षेत्र है वो तीर्थ भूमि थी, तो भगवान सब यादवों को लेके एक बार कुरुक्षेत्र में स्नान करने आए थे ग्रहण के ओकेजन पे। तो वृंदावन में पता चला कि बड़ा ग्रहण हो रहा है और बड़े बड़े राजा लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने आने वाले हैं और यादव लोग भी भगवान श्री कृष्ण के साथ स्नान करने आने वाले हैं। तो नंद बाबा, यशोदा माई, सबकी इच्छा थी कि भगवान चले गए, सालों साल हो गए हैं, हमने कृष्ण को देखा भी नहीं, बड़ा होकर कैसा लग रहा है।
तो हम भी देख लेते हैं कृष्ण कैसा है। तो सब गोकुल से सब लोग गा दिया। दूसरे दिन सुबह उठ के सब खोजने निकले भगवान कृष्ण को, चिल्लाते थे, हे यदुनंदन, हे कान्हा, हे कलुआ, हे श्याम सुंदर, कहाँ हो, चिल्लाते चिल्लाते ढूंढ के जा रहे थे, पूछते पूछते कि द्वारिका वालों का टेंट कहाँ है, द्वारिका वालों का टेंट कहाँ है। पूछते पूछते पहुंचे भगवान के पास। नंद बाबा माँ यशोदा ने देखा तो वो तो रोने लगे भगवान को देख के, पर गोपियों की सुध बुध रही नहीं जब भगवान को देखा तो, है ना। क्योंकि राधा रानी की अवस्था बहुत खराब थी भगवान के चले जाने के बाद। राधा रानी हमेशा रोती रहती थी भगवान के विरह में। तो उस दिन भी राधा रानी का हिम्मत नहीं था कि मैं भगवान को ढूंढने जाऊं। वो तो उसके लिए एक स्टेप चलना भी उसके लिए मुश्किल था। तो वो अपने टेंट में ही थी राधा रानी। सब गोपियों ने जब भगवान को देखा तो उनकी धीरज नहीं रही। उन्होंने भगवान को खींच के रथ पे बैठा दिया और भगवान का रथ पकड़ के खींचने लगी कि मैं तुमको राधा रानी से मिलाने लेके जा रही हूँ करके। और इधर भगवान भी रो रहे हैं राधा रानी के लिए, और सब गोपियों के देख के भी भगवान रो रहे हैं कि आप तो मेरी प्राण प्यारी हैं सब सखिया, और मेरी राधा कैसी है, कह के भगवान रोने लगे। तो कहते कि चलो तुमको तुम्हारी राधा से मिलाती हूँ करके सब खींच खींच के लेके जाने लगे भगवान को। ये भगवान को कुरुक्षेत्र में खींच के राधा रानी से मिलाने के लिए लेके जाना, यही रथ यात्रा का महोत्सव। इसलिए आज भी भक्त लोग भगवान को खींच के राधा रानी से मिलन करवाने के लिए लेके जाते हैं। और जो भी भगवान को खींच के अपनी राधा रानी से मिलन कराने के लिए ले जाता है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी मुझे अपनी राधा रानी से मिलाने के लिए ले जाएगा उस पर मैं बरस पड़ूंगा। सबसे प्रिय भगवान को है राधा रानी। उससे अगर उसको मिलाने के लिए, हम लोग स्कूल में थे, अगर किसी से प्रेम करते थे, अगर उस लड़की से मिलाने के लिए किसी ने कुछ भी हेल्प कर दिया तो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे हम लोग, है ना। तो अब तो राधा रानी जो भगवान से प्राण प्यारी है और सर्व जगत के मालिक, वो हमको क्या नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि मैं उसके लिए गुलाम बन जाता हूँ, जो मेरा रथ खींचकर मुझे राधा रानी के पास ले जाता है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ खींचने का बहुत महत्व है, बहुत 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 माने अतिशय महत्व है। कई कई लोग तो जगन्नाथ रथ यात्रा में अपना प्राण त्यागने के लिए आते हैं, क्योंकि रथ यात्रा के वक्त अगर अपना प्राण त्याग दिया भगवान को देखते देखते, तो ये जगन्नाथ जी इतने पोटेंट है। मैं आपको बताता हूँ, जगन्नाथ जी की जो विग्रह है वुड से बनता है। आप जानते हैं वुड इतना ड्यूरेबल नहीं होता। हर 14 साल पे एक नया विग्रह बनता है भगवान जगन्नाथ का। जो सीमन द्वीप चला गया था जगन्नाथपुरी से विग्रह एक, तो फिर उन्होंने दूसरा नया विग्रह बना लिया था वहाँ पे। तो जो नया विग्रह बनता है जगन्नाथ जी का, आपको पता है कैसे बनता है? 3 ब्राह्मण, है ना, जगन्नाथ जी के मंदिर के पास विमला देवी करके दुर्गा माँ का मंदिर है। विमला देवी के मंदिर में 3 ब्राह्मण ध्यान लगा के बैठते हैं। उनको सपना में विमला देवी आके बताती है अमुक जगह पे अमुक ट्री है, वो ट्री पे ऐसा ऐसा ऐसे चिन्ह होंगे, वही ट्री से जगन्नाथ जी बनेंगे, ये ट्री से बलदेव बनेंगे और ये ट्री से सुभद्रा बनेगी। और वो चिन्ह फिक्स्ड है कि जिस ट्री से में से जगन्नाथ बनेंगे वो ट्री पे चक्र का चिन्ह होगा, शंख का चिन्ह होगा। जिस ट्री पे से बलदेव बनेंगे वहाँ पे सांप लटकता होना चाहिए, ऐसे सांप नीचे उतरेगा जब आप चाहोगे। सुभद्रा वाला ट्री इतना पानी में होना चाहिए, उस पर ये कलर के फूल होंगे। ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। आज भी ये लाइव टेलीकास्ट होता है, ये मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होता है। बिमला देवी के मंदिर में ये लोग बैठते हैं। कितना दिन होगा कोई नक्की नहीं। जब बिमला देवी प्रसन्न होकर उनको सपना देगी, सपना देने के बाद जैसे भूत ने पकड़ लिया ऐसे वो भागते हैं और टीवी वाले उनके पीछे भागते हैं कैमरा लेके। वो भागते हैं तब तक जब तक वो मंदिर वो ट्री के पास ना पहुंचे। ट्री के पास पहुंचने पर वेरीफाई किया जाता है। वो जगन्नाथ मंदिर से आते हैं ब्राह्मण, वेरीफाई करते हैं कि उस पर ये सब चिन्ह है जो जगन्नाथ जी के चिन्ह है। अगर है तो वो ट्री यूज किया जाता है। अगर वो चिन्ह नहीं है देन ही अगेन कम्स बैक टू द टेम्पल, ही अवेट्स फॉर विमला देवी टू डायरेक्ट हिम टू अनदर ट्री। एवरी 14 ईयर दिस थिंग हैपन। और जब जगन्नाथ जी का विग्रह बनता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। कैसा होती है पता है? एक सबसे बुढ़े व्यक्ति को लाया जाता है जगन्नाथपुरी से, उसके आंख पे पट्टी लगाया जाता है रात को। और जो ओरिजिनल जगन्नाथ बने थे ना प्रताप किंग इंद्रद्युम्न के वक्त के, उनका एक टुकड़ा लकड़े का रखा गया है तब तक। वो लकड़ा लेके वो इस जगन्नाथ जी के शरीर के साथ एक छोटा सा ओपनिंग रखते हैं, उसमें वो लकड़ा रखता है। वो लकड़ा इतना दैवी है कि वो ब्राह्मण उसके बाद एक्सटेसी में चला जाता है, वो प्राण देह त्याग देता है, वो जीता नहीं है वो ब्राह्मण। जो आदमी ऐसा करता है उसके लिए लाइन लगती है वेटिंग लिस्ट में कि हमको करने दो, हमको करने दो। हर 14 साल में एक बार ये चीज़ होता है और लाइव टेलीकास्ट होता है। अब 2014 में अगेन होगा ये, 2014 में। तो मैं सोच रहा हूँ जगन्नाथपुरी जाने का, दर्शन करने उसको।
हमारी लाइफ टाइम अगर 80 साल जिएंगे तो 5 एक बार हमको ये लाइफ टाइम में आया, 5 बार में तो फर्स्ट 15-20 ईयर्स तो हम ऐसा ही इग्नोरेंस में घुमा दिए, और बाकी के पिछले 20-30 साल तो हम चल भी नहीं पाएंगे आर्थराइटिस की वजह से। तो अभी ही टाइम है कि ये सब कुछ दर्शन वर्शन कर ले, है ना। तो ये जगन्नाथ इतने पोटेंट है ना, इतने पोटेंट है कि लोग वहाँ पे अपना शरीर त्यागने आते हैं। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में काट चलती है, जहाँ जगन्नाथ जी को रोकना है वहाँ काट रुक जाती है। और फिर कितना भी करो, हाथी बुलाओ, 10 हाथी बुलाओ, 20 हाथी बुलाओ, वो काट हिलेगी नहीं जब तक भगवान को वहाँ रुकने पर जिसकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती। उसके बाद तो रथ यात्रा जब निकलती है जगन्नाथपुरी में, तो यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर है, एक दूसरी जगह पे गुंडीच्या मंदिर है, जो राजा इंद्रद्युम्न थे उनकी पत्नी का नाम गुंडीच्या था, तो उसके नाम पे ये मंदिर बना है गुंडीच्या मंदिर। उसको वृंदावन माना जाता है। यहाँ से भगवान निकल के गुंडीच्या में जाते हैं, 7 दिन तक वहाँ पे रहते हैं भगवान, फिर वापस रथ यात्रा लेके वापस अपना मंदिर वापस आते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, कृपा करके यू प्लीज़ कम टू द रथ यात्रा and you at least take some time to pull the cart of Rath of Lord Jagannath. And the bhav in the heart should be that I am taking my pran, my beloved Krishna to meet with his beloved Radharani. That should be the bhav. And one should constantly take darshan of Jagannath while pulling the cart. ये नहीं कि पीछे कुछ भार रखा है उसको खींच रहे हैं दम लगा के, हैसा दम लगा, ऐसा नहीं। उनका दर्शन करते करते अच्छे से गदगद हृदय से, गदगद आंखों से भगवान को देखते देखते उनका कार्ड पुल करना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा में हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। भगवान की इस रथ यात्रा इतनी ऑस्पिशियस है, बहुत सेवा करनी चाहिए, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, है ना। किसी के पास मन होता है तो मन से भी सेवा करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो मन से सोचना चाहिए कि हाँ जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है, उसके लिए मैं ये श्रृंगार कर रहा हूँ भगवान को, उसके लिए ये पका रहा हूँ, मैं आज भगवान के लिए ये सेवा करूँगा, आज भगवान के लिए मैं रास्ता साफ करूँगा, आज भगवान के लिए मैं रथ बना रहा हूँ। मन से भी बहुत हम कर सकते हैं, पर तन से अगर हो सकता है तो तन से भी सेवा करना चाहिए। आके रथ खींचो, वहाँ जो भक्त लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो सबको, रोड साफ करो, वहाँ गार्बेज है वो उठाओ, जो भी वर्क है। जैसे वृंदावन विजय प्रभु ही इज हेडिंग हैरिसबर्ग रथ यात्रा, उनको पूछना चाहिए एक्चुअली दिस इज अ लाइफ टाइम्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अवर लाइफ, इम्प्रूव अवर गुड, टू मेक अवर फॉर्चून गुड फॉर्चून। कि इतना कोई ओकेजन मैनिफेस्ट कर रहा है रथ यात्रा का, कि जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आएंगे, जगन्नाथ जी सबको आशीर्वाद देंगे और इतनी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वी शुड बी ललाहित, वी शुड बी वेरी मच लाइक ए ग्रीडी। अगर पता चले कि कहीं पे $100,000 हर रोज दिए जाते हैं फ्री में, तो कितना ग्रीड आ जाता है कि अरे कैसे मैं सुबह जल्दी उठ के वहाँ पे जाऊँ और लाइन में खड़ा रह जाऊँ 100,000, उसको पूछूँ कि क्या कुछ काम है तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन में, तो तुझे हेल्प करता हूँ, ये है वो है ना। तो उसी तरह ये इतना मर्सी फ्री बांटा जा रहा है जिससे हमारा जीवन का पूरा ध्येय सिद्ध हो सकता है, मनुष्य जीवन का। तो वहाँ जाके ग्रीडीली विजय प्रभु को पूछना चाहिए, अरे प्रभु आप छोड़िए, मैं ही सब काम करता हूँ। झगड़ा होना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे सेवा करनी, नहीं नहीं मुझे सेवा करनी, नहीं नहीं मुझे सेवा करनी। जैसे $1 की 10-100 की नोट जमीन पे गिर जाए और 2 बच्चे झगड़े लेने के लिए, उस तरह ये तो प्राइसलेस है सेवा। झगड़ना चाहिए, उसके बाद सेवा देंगे, अरे नहीं प्रभु किसी और को ढूंढ लो ना, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा नहीं। झगड़ना चाहिए, मुझे क्या सेवा मिलेगा, अरे इस बार मुझे कुछ सेवा ही नहीं मिला, और सेवा दीजिए और सेवा दीजिए और सेवा दीजिए, है ना। और कहीं पर पता चले कि कोई भी फ़ोन करने पर उसको $1,000 दे देता है, तब पहचानता है नहीं पहचानता, हम फ़ोन करके ट्राई तो मारेंगे ना, कह रहे भैया तुम, मैंने सुना है तुम सबको $1,000 देते हो, आ जाओ मैं भी लेने। हाँ आ जाओ, है ना। तो अगर अब पता चल गया कि हैरिसबर्ग में रथ यात्रा हो तो ये विजय प्रभु को फ़ोन करने पर सेवा मिल सकती है, तो क्यों ना फ़ोन करके पूछा जाए, ईमेल करके, प्रभु जी कुछ सेवा है तो हमको दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कितना महत्व है जगन्नाथ रथ यात्रा का। और जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, इतने कृपालु, इतने कृपालु है, मैं आपको क्या कहूँ, मुझे तो स्वयं अनुभव है उनकी कृपा का बहुत सारा। मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था तब यही बताने जा रहा था। मैं जब 97 में पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था, तब प्रेक्षा मेरी वाइफ शिकागो में थी और हम लोग तो काफ़ी कड़के थे, तो कुछ ना कुछ करके हम सोचा पढ़ लेंगे तो कुछ सेट हो जाएंगे करके। तो मैं न्यू जर्सी में पढ़ रहा था। तो रात को सोते सोते एक बार मुझे विचार आया, मैंने जगन्नाथ जी के बारे में उस दिन पढ़ा था, तो मुझे विचार आया कि जब कभी हमारा भविष्य में अपना खुद का घर होगा, अपार्टमेंट होगा, हमारी गृहस्थी चालू होगी, तो सबसे पहले हम जगन्नाथ जी को घर में इनवाइट करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये विचार मुझे आया, मैं सो गया सैटरडे नाइट को,
दूसरे दिन संडे इवनिंग को प्रेक्षा का मेरे पे फ़ोन आया कि मैं भी वहाँ शिकागो मंदिर आई हुई हूँ, वहाँ पे भी एक डिवोटी है, उसका नाम प्रशांत है, वो जगन्नाथपुरी गया था और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेके आया है, पर उसको सेवा नहीं करनी है, तो किसी को ढूंढ रहा है कि कोई सेवा करे, तो मुझे पूछ रहा है कि तुमको चाहिए करके, तो मैं क्या करूँ, ले लूँ। मैं बोला मुझे कल ही ये विचार संकल्प हुआ है और ठाकुर जी ने आज घर पे आने का भी सोच लिया, तो तुम्हें ले लूँ नहीं, आप ले ही लो इसको, है ना। तो जगन्नाथ जी उस तरह घर पे आ गए सेवा स्वीकार करने के लिए। और जो भी ठाकुर जी आए हैं घर पे स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं। गौर निताई भी जो आए हैं घर पे, वो एक मधुपति करके प्रभु जी हैं न्यू जर्सी में, वो वृंदावन गए थे, वहाँ से गौर निताई लेके आ गए। और राधा शरद बिहारी तो इस तरह से आए हैं कि एक ब्रजवासी भक्त रहते हैं हमारे हैरिसबर्ग में, तो जब हैरिसबर्ग का प्रोग्राम चालू हुआ था तो हमारे पास राधा कृष्ण थे, पर किसी और भक्त के थे, अनिल गोयल करके थे एक भक्त। फिर वो मूव हो गए वर्जीनिया, तो अपने साथ अपने राधा कृष्ण लेके चले गए, इतने छोटे थे। तो हम सोच रहे थे कि अरे पहले उनके राधा कृष्ण थे, जन्माष्टमी होती थी तो हम उनकी सेवा करते थे, अभिषेक करते थे, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो सोचते थे कि जब हमारे गुरु महाराज नेक्स्ट ईयर आएंगे समर में, तो उनको बोलेंगे कि हमारे लिए भी वृंदावन से अब राधा कृष्ण लेके आइएगा। मीनवाइल ये संजय पांडे और रश्मि पांडे हमारे प्रोग्राम में है, वो जा रहे थे वृंदावन, वृंदावन के ही है वो। तो वो लोग जब वृंदावन से वापस आए तो उन्होंने प्रेक्षा को फ़ोन किया कि हम आपके लिए राधा कृष्ण लेके आए हैं। तो प्रेक्षा बोलती अच्छा कैसे लेके आए? तो बोले प्रशांत ने हमको बोला था। बोला मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि मुझे अपने गुरु महाराज को ही बोलना था लाने के लिए, क्योंकि वो बरोबर खुद बनवा के लेके आते हैं वो अच्छे से, तो ही मेक श्योर कि वो पर स्पेसिफिकेशन ठीक से बने हैं। बोले नहीं, पर ये क्या उनको ऐसा लगा कि मैंने उनको बोला है, मुझे पक्का पता है मैंने उनको बोला ही नहीं था कि आप लेके आइए, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज को बोल के रखा हूँ कि आप लेके आइएगा, तो मैं दूसरे किसी को क्यों बोलूँगा कि आप लेके आओ। और उस तरह से राधा शरद बिहारी हमारे, हम बोले अब राधा कृष्ण अपनी इच्छा से ही आए हैं वृंदावन से, तो उनकी सेवा करनी ही करनी है। तो राधा शरद बिहारी जो हैरिसबर्ग के ठाकुर जी वो इस तरह से आए। और जगन्नाथ जी तो कई बार रात को हमको हमेशा पानी रखते हैं उनके पास रात। राजस्थान में उसके पिताजी पुजारी थे एक मंदिर में, और ब्राह्मण थे तो पूजा वूजा करवाते थे। तो एक दिन उनको किसी दूसरे गांव में पूजा करवाने जाना था, तो उन्होंने ये लड़की को बोला कि ये सुन, मुझे कल जाना है सुबह, तो तू भगवान को कुछ बना के खिला देना ठाकुर जी को, पर मेक श्योर तो उनको भोग लगाना भूले नहीं। बोलती हाँ ठीक मैं लगा दूँगी। तो उसने दूसरे दिन खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। अब वो छोरी को पता नहीं कि ठाकुर जी तो भोग खाते हैं पर भी नहीं खाते, माने खा लेते हैं पर उसमें से कम नहीं होता, वापस पूरा अंदर रख देते हैं ठाकुर जी, रिप्लेनिश हो जाता है ना। अपने को ऐसा ATM मशीन चाहिए कितना भी निकालो अंदर रिप्लेनिश नहीं रहे वो कुछ नहीं। तो भगवान का प्रसाद इस तरह से लगता है, भोग लगता है तो भगवान खाते हैं पर रिप्लेनिश उनकी कृपा से रिप्लेनिश हो जाता है। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी सॉरी, मेरी मम्मी के पापा गुजरात में वड़ताल करके गाँव है, वहाँ स्वामीनारायण का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे वो सेवा करते थे। पूर्णिमा का जब दिन होता था ना, हजारों लाखों भक्त लोग आते थे। हाँ, मेरे दादाजी ऐसे मंदिर की अगासी पे जाते थे, छत पे ऐसे करके खाली देख लेते थे कितने लोग हैं, और कुकिंग करवाते थे मंदिर में, पूरा किचन वो संभालते थे। और कुकिंग होने के बाद सबको एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, एवरीबडी विल, धोती होती है ना, धोती सबके ऊपर, आप इतने बड़े बड़े बर्तन रहते हैं तो धोती से ढक दीजिए पूरे बर्तन, और थोड़ा सा खोलिए निकालने के लिए, धोती ढक के रखिएगा। मेरे आज कई लोग आज भी उनको याद करते हैं कि एक भी पूर्णिमा को ऐसा नहीं बना कि खाना कम हुआ है। बोलते हैं 1000 मानस का बना है या 10,000 लोग आ जाए, कभी खाना कम नहीं हुआ, सबको खाना मिला, प्रसाद मिला 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 मिला। मेरे दादा को लोग मानते थे, उनका पैर छूने आते थे घर पे। वो सोते थे, एडवोकेट थे, वो जब अपने घर में सोते थे ना, सुबह सुबह दोपहर में सोते थे कभी कभी, तो दोपहर में कोई आता था तो जो भी लोग, नडियाद करके गाँव है, वड़ताल के बाजू में गाँव है, वड़ताल से 10-11 किलोमीटर है, जो भी लोग नडियाद आते थे, वड़ताल जाने के लिए नडियाद वॉज अ हब। कोई भी सिटी से आओ, वड़ताल नडियाद आओ, फिर नडियाद से वड़ताल जाया जाता है। तो नडियाद में ही बस स्टॉप के पास मेरा नाना का घर था। तो कई भक्त लोग आते थे घर पे, नाना सोते थे, उनका पैर छू के चले जाते थे, उनको पता इतने सिद्ध पुरुष है। मेरे नाना जी मुझे बताते थे 14 साल की उम्र में उनको रामायण पढ़ने पर सीताराम लक्ष्मण ने दर्शन दिया था, सीताराम लक्ष्मण। और मेरे नाना जी का एक और आशीर्वाद मैं आपको बताता हूँ, 12th जब पास किया, हम लोग तो बहुत सामान्य घर से थे, और कुछ पैसा, घर वर कुछ भी नहीं था हमारे पास, ज़मीन कुछ भी। तो हमारी मम्मी ने, पापा ने हमको बोला था कि बेटा पढ़ोगे तो कुछ लाइफ में होगा, नहीं तो कुछ तुम्हारे लिए हमारे पास तो है नहीं देने को। तो 12th में, इंडिया में तो 12th इज़ द मेन थिंग, 12th साइंस में जितना पॉइंट आया उसी पे सब होता है।
तो 12th का एग्ज़ाम देने पर मेरे नाना जी का आँख का सर्जरी हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि सेवा करने के लिए आ जाना। तो मैं सेवा करने गया था नाना जी की। तो उनसे आँख से दिखता नहीं था, तो मुझे बोलते हैं कि ऐसा कर, 7 दिन का पारायण कर, शास्त्र में से पढ़, मैं सुनूंगा सुबह शाम बैठ के, 7 दिन उपवास करके पढ़ मेरे लिए। तो मैंने बोला ठीक है नाना जी, आपको नहीं दिखता है, क्योंकि वो ऑपरेशन किया था तो आँख पे पट्टी रहती थी। तो 7 दिन पढ़ा। जिस दिन पूर्ण होती थी, इस दिन नाना जी ने मुझे पूछा कि बेटा क्या चाहिए, बोल, ठाकुर जी से मांग ले। तो मैं बोला कुछ नहीं, बस अब 12th का रिजल्ट आएगा, अपने को 80% आ जाए तो बहुत है, अब सब बेड़ा पार है। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है, ठाकुर जी के सामने संकल्प कर दे। मैंने संकल्प किया। आप नहीं मानेंगे, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री और मैथ। तो 400 टोटल मैक्सिमम मार्क होते हैं। तो मेरे 400 में से 359 आए, विच इज़ एग्जैक्टली 80%। और मैं कुछ इतना तेजस्वी तो कुछ था नहीं पढ़ने में। आज भी मुझे बहुत तकलीफ है कुछ पढ़ने में। तो एग्जैक्टली 80% आ गए मेरे को जिसमें चाहिए वहाँ एडमिशन मिलता था, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, जो भी चाहिए वो नाना जी की कृपा। तब से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया मेरे नाना जी के ऊपर। तो जो भी फिर उसके बाद भगवान का मुझे जो भी मिला वो नाना जी का आशीर्वाद है। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में आया, मैं बहुत बीमार हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में ही, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में बहुत बीमार हो गया। फर्स्ट ईयर में इतना बीमार हो गया कि मेरा देह छूटने वाला था। और तो मैंने बोला कि मेरे नाना जी को बुला लीजिए, मेरे नाना जी मेरे साथ होने चाहिए। तो मेरे नाना जी आके मेरे साथ रहने लगे। तो मेरी एग्ज़ाम थी उस वक्त समर में। तो मैंने नाना जी को बोला कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, और सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गया तो पूरा साल वापस करना पड़ेगा मुझे। तो नाना जी बोलते हैं कि बिल्कुल फिक्र मत कर, खाली पेपर लिखने बैठे ना, भगवान का दर्शन करके जा, पेपर भगवान का नाम लेके, तेरे जो भगवान दिमाग में दे लिख के आ जा। मेरे पिताजी बाहर खड़े रहते थे थर्मोस और दवाई ववाई सब लेके। मैं हार्डली आधा घंटा बैठ पाता था पेपर हॉल में। मुझे रिक्शा में बिठा के लेके जाते थे। मैं ऐसे राजू स्कूटर पे बैठने की भी मेरी हालत नहीं थी। अंदर जाके कैसे जैसे तैसे करके मैं जो भी लिख के आता था, मैं एग्जैक्टली 54% से पास हो गया फर्स्ट ईयर में, और मेरे नाना जी के आशीर्वाद से। और वही नाना जी ने मेरे यहाँ आने से पहले मेरे हाथ में ही अपना शरीर छोड़ा है, भगवान का दर्शन करते करते अपना शरीर छोड़ा है। अगले दिन बोल दिया था, उनके एक और भक्त थे, उन्होंने बोल दिया था कि कल ये अपना शरीर छोड़ने वाला है करके। तो मैं वीज़ा लेके आया था बम्बई से मेरा यहाँ आने का। जैसे ही मैं वीज़ा लेके बड़ौदा आया, मेरी मम्मी ने बताया कि नाना जी की तबीयत ख़राब है, हमको जाना चाहिए नडियाद। तो हम नडियाद चले गए। वहाँ मैं पहुँचा तो सीधा हॉस्पिटल ही गया मैं नाना जी के पास। तो वहाँ जो भक्त थे उन्होंने किसी को बताया था, तो वो आके मुझे बताने लगे, मेरे जो मामा का बड़ा लड़का है वो बताने लगा कि उनका नाम बाबू भाई था। बोले बाबू भाई ने बोला है कि कल माने आज ये देह छोड़ेंगे अपना। तो हम लोग सब उनको घेर के बैठे थे, वो मेरी गोद में थे ऐसे। तो सब कीर्तन गा रहे थे ठाकुर जी का। तो एक आज हमारे ओरडे रे आविया सुंदर सी घनश्याम करके एक कीर्तन है, उसमें भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ये कीर्तन जो गाएगा, हाँ, तो मैं स्वयं उसके आके सब दुख दूर करूँगा, ऐसा। तो वो कीर्तन गाया जाता था। जिसको भी कोई भी तकलीफ होता था हमारे घर में, तो वो कीर्तन गाते थे, ठाकुर जी वो तकलीफ दूर करते थे। तो सब भक्त लोग वो कीर्तन गाते थे। तो मेरे दादाजी ने मना किया कि आप ये कीर्तन अब बंद कर दो गाना, क्योंकि ठाकुर जी मुझे लेना आना चाहता है, पर आप ये कीर्तन गा रहे हो तो वो आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देना चाहता, तो वो मुझे लेने नहीं आ रहा है। वो बाहर आके खड़े हैं पर अंदर नहीं आ रहे हैं। बोले आप दूसरा कीर्तन गाओ। तो उन्होंने बोला कि माणकीय चढ़िया रे मोहन वनमाली, माने भगवान घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, ऐसा कीर्तन है। बोले वो कीर्तन गाओ। वो कीर्तन गाना चालू किया। मेरे दादा ने ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चालू किया। ऐसे ही मेरे हाथ में उन्होंने देह छोड़ा। माने ये सिद्ध महात्मा पुरुष लोग हैं ना, ये बात कहाँ से निकली मुझे नहीं पता, पर ये हाँ जगन्नाथ जी, माने जगन्नाथ जी इतने सिद्ध है, उनके भक्त भी इतने सिद्ध है। तो ये जो कूर्मा बाई है वो खिचड़ी बना के भगवान को खिलाई। तो भगवान को वो बोली कि हर रोज हमारे पापा जी तो आपको खिलाते हैं, आप खाते हैं, आज खा नहीं रहे, मेरे पापा जी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी करके वो गिड़गिड़ाने लगे। ठाकुर जी खा नहीं रहे हैं। तो कुर्मा बाई ने भी कहा कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी अपना। तो ठाकुर जी ने उसकी खिचड़ी स्वयं खाई, पर खाने पर ठाकुर जी को चटका लग गया उसकी खिचड़ी का। तो ठाकुर जी ने बोला कि देख तू मुझे अपनी खिचड़ी हर रोज खिलाया कर। उसके पिताजी को बोल दिया कि अब मैं खाऊंगा तो इसके हाथ का खाऊंगा, किसी और के हाथ का नहीं खाऊंगा, है ना। तो जगन्नाथ जी वो रहती थी राजस्थान में, जगन्नाथ रहते थे उड़ीसा में, काफ़ी डिस्टेंस है दुनिया, दो अपोजिट साइड।
जगन्नाथ जी हाँ कुर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे थे। अब पता नहीं था सबको कि जगन्नाथ जी खा रहे थे। कुर्माबाई तो वहीं पे खिचड़ी पका के अपने लोकल मंदिर था वहाँ पे भोग लगाया करती थी। तो कुर्माबाई की ख्याति बहुत बढ़ गई क्योंकि ठाकुर जी वो मंदिर में स्वयं खिचड़ी खाते थे और सब उसका प्रसाद लेने आते थे। बहुत फेमस हो गया था कुर्माबाई की खिचड़ी और कुर्माबाई का प्रसाद। बहुत बड़े बड़े संत लोग दर्शन करने आते थे कुर्माबाई का। एक साधु महात्मा आया, कुर्माबाई को देखा, कुर्माबाई सीधा सुबह उठ के खिचड़ी पकाती है और ठाकुर जी को लगाती है। तो उसने बताया कि अरे बेटी, ठाकुर जी स्वयं तेरे हाथ से खा रही है, थोड़ा नियम पालन कर, थोड़ा स्वच्छता रख जीवन में, नहा धो के अच्छे से सब मंत्र बोल के भोग लगा, ये कर वो सब सीख, विधि सब सिखाया। कुर्माबाई अब दूसरे दिन सुबह उठ के सब विधि करने लगी। इधर सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अब खिचड़ी बनी नहीं। तब पता चला कि कुछ मिसिंग है, पर उस दिन कुछ हुआ नहीं। रात को वो जो साधु आया था ना कुर्माबाई को इंस्ट्रक्शन, उसके सपने में जगन्नाथ जी आ गए। बोले बदमाश आदमी, तूने क्या उल्टा सुल्टा पढ़ा दिया कुर्माबाई को। तो बोले क्या हुआ ठाकुर जी? बोले तुझे पता है मैं जगन्नाथपुरी से उसकी खिचड़ी खाने हर रोज आता हूँ यहाँ राजस्थान, सुबह मेरा ब्रेकफास्ट ही वही होता है, और आज मैं आके खड़ा रहा, उसकी खिचड़ी अवेलेबल नहीं है टाइम से, और वहाँ इतने सारे भक्त लोग मेरे दर्शन के लिए आतुर है। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का खाने के बाद दरवाजा खुलता है सब दर्शन के लिए। तो बोलता है मेरा दर्शन लेट हो रहा है, वहाँ लोग मेरे लिए चिल्ला रहे हैं और यहाँ कुर्माबाई की खिचड़ी तैयार नहीं है। जाके बोल के आया कि जैसा पहले बन रहा था ऐसा खिचड़ी बननी चाहिए मेरे लिए। जब उसने बताया कि कुर्माबाई तुम्हारे खिचड़ी खाने तो जगन्नाथ जी आते हैं, तो कुर्माबाई तो बेचारी रोने लगी, वो मुंह हो गई जगन्नाथपुरी। हर रोज जगन्नाथ जी को सुबह उठ के कुर्माबाई अपनी खिचड़ी खिलाती थी। आज भी जगन्नाथपुरी में कुर्माबाई की खिचड़ी का सबसे पहला भोग लगता है। ठाकुर जी सुबह उठ के सबसे पहले दातून किए बिना कुर्माबाई की खिचड़ी खाते हैं ठाकुर जी, आज भी। और आज भी जगन्नाथपुरी में जो पंडे लोग हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद हाथ में पानी लेते हैं। पानी लेने पर पानी में जगन्नाथ जी का चेहरा दिखता है उनको। जब चेहरा दिखा उसका मतलब भगवान ने भोग स्वीकार किया। अगर चेहरा नहीं दिखा तो भोग नहीं स्वीकार हुआ, वो भोग हटाया नहीं जाएगा वहाँ से। आज भी ये स्थिति है। तो वो लोग पता इस तरह से चला कि वो जगन्नाथ जी की वो कुर्माबाई की खिचड़ी लगाए बिना दूसरे दिन भोग लगा। अच्छा एक्चुअली कुर्माबाई वहाँ मूव हुई, उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। पता चल गया जगन्नाथ जी उनकी खिचड़ी खाते हैं। अब दूसरे दिन कुर्माबाई मूव होकर चली गई जगन्नाथपुरी में, बोलती कि जगन्नाथ जी ने मेरी खिचड़ी खाते हैं हर रोज, तो मुझे उनको खिचड़ी भोग लगानी है। तो पंडो तो कहाँ, वहाँ तो इंटरनेट था नहीं कि सबको पता चल जाए कि कुर्माबाई इतनी महान हस्ती है। तो कुर्माबाई तो सोचा ये कोई गरीब स्त्री है, इमोशनल फूल होगी कोई। तो बोले नहीं, तुझे ये स्नान किए बिना अच्छा खाना पकाया बिना जगन्नाथ जी को नहीं लगता, तो तेरी खिचड़ी नहीं लगेगी। तो उस दिन सुबह जब उन्होंने सब भोग लगाया जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी का चेहरा ही दिखे नहीं यहाँ पे। अब जगन्नाथ जी ने खाना पीना बंद कर दिया। बात पहुंची राजा के पास। राजा आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रेसिडेंट राजा है, राजा इज़ द मेन पर्सन। तो उस वक्त कि जगन्नाथ जी ने सुबह का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया। बात पहुंची राजा के पास कुछ प्रॉब्लम है। तो अब राजा को जगन्नाथ जी ने सपने में कहा कि मेरी भक्त कुर्माबाई उसकी खिचड़ी खाने में राजस्थान जाया करता था। उसको जब पता चला तो वो प्रेम के बस यहाँ जगन्नाथपुरी रहने आ गई है, मुझे खिचड़ी लेने आई सुबह में, तो पंडों ने तुम्हारे मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ भी खाना नहीं खाने वाला। आज से सबसे पहले मुझे खिचड़ी लगेगी, दातुन किए बिना मैं खिचड़ी खाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ भी खाऊंगा। आज भी कुर्माबाई की खिचड़ी जगन्नाथ जी को लगती। कुर्माबाई तो अब नहीं रही, पर उस जिस तरह से वो बनाती थी वही खिचड़ी आज भी कुर्माबाई की खिचड़ी कही जाती है। जगन्नाथ जी को पहले लगती है, सबसे पहले चूल्हा जलता है, कुर्माबाई की खिचड़ी बनती है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद 56 भोग लगता है जगन्नाथ जी को, बाकी के सब। ये जगन्नाथ जी है। एक और पास टाइम सुना के मैं स्टॉप करता हूँ। ये जो राजापुर के जगन्नाथ मैंने बोला था ना, एक बार जगन्नाथ जी को फनस बोलते हैं, फनस आप क्या बोलते हैं? फनस, जैकफ्रूट बहुत पसंद है जगन्नाथ जी को, उसकी सब्जी जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो उड़ीसा में जैकफ्रूट की खेती होती है, बहुत सारे बगीचे होते हैं जैकफ्रूट के। तो मंदिर, राजापुर मंदिर के पास किसी का जैकफ्रूट का बगीचा था, तो वहाँ पे बहुत चोरी होती थी जैकफ्रूट की। तो वो बहुत सोच रहा था किसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए। तो एक दिन तो बोलता है कि मैं दिन रात पहरा लगाऊंगा, तो पहरा लगाना चालू किया। तो उसने देखा कि एक तरफ पे कोई पत्थर मारने का कुछ आवाज़ आ रहा है, तो वो भाग के गया, देखा तो एक बच्चा जैकफ्रूट तोड़ रहा है। तो उसने जोर से चिल्लाया और भागा लकड़ी लेके उसके पीछे। वो बच्चा भी भागा, वो भी आदमी उसके पीछे भागा, किसान भाग के वो किसान का जो फार्म है ना, उसका बॉर्डर कूद के वो भागा। तो बॉर्डर में ये लोग है ना,
बेर के ऐसे सब पेड़ लगाते हैं जिसमें कांटे होते हैं, जैसे वो सब ढोर अंदर ना आ जाए, प्राणी पशु पक्षी। तो उसका चद्दर, उस गांव में सब चद्दर ओढ़ते हैं ठंडी में, तो चद्दर उसका उसमें फंस गया और फट गया। वो लड़का भागा तो वो किसान भी उसके पीछे भागा, भागते भागते गया और लड़का घुस गया मंदिर में राजापुर के। तो गोभी गया मंदिर में लकड़ी लेके, पुजारी को बोलता है तेरे बेटे को बाहर निकाल। तो बोले क्या हुआ? अरे मेरे वहाँ आके हर रोज वो जैकफ्रूट चुरा के जाता है, आज मुझे पता चला। बोला मेरा बेटा है ही नहीं कोई, कहाँ से जैकफ्रूट गिरा? बोले जो भी है तेरे मंदिर में हाइड कर रहा है। बोले ढूंढ लो तुम। सब जगह ढूंढा, कोई लड़का ही नहीं मिला। बोला कहीं भाग गया लगता है। बोला वेट अ मिनट, मेरे उसमें उसका चद्दर फट गया था, मैं चद्दर लेके आता हूँ, उसका टुकड़ा भी मैं बताता हूँ किसका लड़का है। और चद्दर लेके आया कि बोल ये इसका फटा हुआ टुकड़ा है। तो चद्दर देखा तो पुजारी तो कांपने लगा चद्दर देख के। बोलता तेरे को क्यों पसीना छूट रहा है? तो बोलते हैं अभी देखो 1 मिनट। उसने दरवाज़ा खोला मंदिर का, जगन्नाथ जी का चद्दर, सेम चद्दर एक कोने में से उतना ही फटा हुआ है। उसने जाके मिला लिया, वही फटा हुआ टुकड़ा है। जगन्नाथ जी स्वयं वो खेत के अंदर चोरी करने जाया करते थे जैकफ्रूट का। तो अब उसको पता चला कि हाँ मैं इतना किस्मत वाला हूँ। ये अभी का बात है, ये 100-200 साल पुरानी बात नहीं, अभी का लीला है ये। तो राजापुर में 1979 के बाद की लीला है ये। ऐसा राजापुर के जगन्नाथ जी की असंख्य लीला है, मैं जो आपको नेक्स्ट वीक सुनाऊँ। और जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी की भी असंख्य लीला है। मैं इतना सब इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी उत्सुकता हो जाए अंदर के, हाँ रथ यात्रा हो रही है। हम लोग तो कब जगन्नाथपुरी जाएंगे रथ यात्रा में, पर जगन्नाथ जी कृपा करके जगन्नाथपुरी से यहाँ आ गए हैं हमारे लिए, इतने करुणामय हैं। तो हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। कोई इतना कितना भी हमको कुछ, जैसे कोई मेहनत करके हमारे लिए कुछ पिज़्ज़ा पका के लेके आता हो, कितना भी कोलेस्ट्रॉल हो, तो बहुत मेहनत करके दूर से पका के लेके आया है, तो बोले ठीक है 1 पीस तो ले लूँगा, 1 टुकड़ा खा लूँगा, है ना। उसका मन रखने के लिए भी तो खा लेते हैं, है ना। उसी तरह बेचारे जगन्नाथ जी इतना मेहनत करके अपना उड़ीसा 56 भोग सब छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए जाके उनका काट खींचना, उनका प्रसाद खाना। मैं तो बोलता हूँ कि घर घर में जगन्नाथ जी का फोटो रख के उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। और ये नहीं तो एटलीस्ट जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन तो अवश्य आना चाहिए। और हम क्यों अकेले बड़भागी बने, पूरा फैमिली को लेके उनका भी भाग्य, है ना, संवारना चाहिए। और जो भी दोस्त लोग हैं उनको नहीं समझ में आता, बोलने का पिकनिक, नदी किनारे पिकनिक हो रही है, चलो। नहीं सच्ची में नदी किनारे ही रथ यात्रा हो रही है और फर्स्ट क्लास प्रसादम बनता है वहाँ, सब एंटरटेनमेंट होता है, स्टेज सब कुछ है, बहुत अच्छा है। इट्स लाइक ए वेरी पिकनिक एटमॉस्फियर। तो पिकनिक पे चलिए हरीशभाई, कैसे तैसे करके उनको भगवान जगन्नाथ का दर्शन कराना चाहिए, है ना। आप समझते हैं कई गोरे लोग, ब्लैक लोग जिनको पता ही नहीं जगन्नाथ कौन है, आके नाचते हैं भगवान के सामने, पर नाचने पर उनका अकाउंट ओपन हो जाता है भगवान के साथ। नेक्स्ट जन्म मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उनका ऐसी जगह पे होगा जहाँ से उनकी वो भक्ति आगे बढ़ना चालू करेगी, है ना। भगवान मेक श्योर कि हीज डिवोशनल लाइफ इज टेकन केयर ऑफ। इसलिए अगर आप अपना लाइफ बिगाड़ना चाहते हैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करिए, है ना? पर एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, उसके बाद जगन्नाथ आपको नहीं छोड़ेंगे। आप भले उनको छोड़ दो पर वो आपको नहीं भूलेंगे। उनका डेटाबेस बड़ा स्ट्रांग है, उनका मेमोरी तो करप्ट ही नहीं होता। वो याद रखेंगे, अच्छा ये आया था, ये आया था, ये मेरे सामने नाचा था, इसने मेरा कार्ड खींचा था, मैं उसका गुलाम हूँ। वो धीरे धीरे अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। इंडिया में पता है ना, ट्रेन में कभी जाते हैं या बस में, तो ट्रेन में ज़्यादा देखा जाता है तो 5-6 लोग एक बर्थ पे बैठे हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, पर हम बोलेंगे अरे अपना बच्चा है, थोड़ा बैठने की जगह दो, तो बच्चा थोड़ा सा टिका के बैठेगा, पर धीरे धीरे ट्रेन हिलेगी, बच्चा भी हिलेगा, लोग भी हिलेंगे, धीरे धीरे वो पूरा अंदर चला जाता है। तो बाकी के लोग कैसे थे, है ना, हमको भी ऐसा हो। उसी तरह जगन्नाथ जी का होता है। एक बार जगन्नाथ जी को देख कर अब थोड़ा भी देख लिया तो जगन्नाथ वो बच्चे की तरफ बैठ के धीरे धीरे हिलते पूरे हमारे जीवन में छा जाता है। हमको पता भी नहीं चलेगा वो कब छा गए हमारे जीवन में, पर उनको मौका देना चाहिए चाहने का, है ना। इतना हमारे लिए वो आए हैं दूर से, तो हमको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरा नम्र निवेदन है सबसे, नॉट ओनली यू बट ब्रिंग एवरीबडी यू कैन इमेजिन फ्रॉम राइडिंग टू कम टू द रथ यात्रा, एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड सम सर्विस। इफ नॉट, आई कैन फाइंड सम सर्विस टू यू इफ यू वांट टू डू सम सर्विस। Hare Krishna. Any questions on Jagannath ji? Or we can, it's getting late, so we can talk about more of Lord Jagannath while eating. We can sit in a circle. So anybody has any question, you can ask at that time. There is many other pastime why he looks like this. I don't have. We need at least 10 or 12 hours to talk properly about Jagannath. Hare Krishna. Hare Krishna. He travels all year with that truck.
and he sets up this festival of India. From Cleveland. हाँ, everywhere हाँ जाता है. For a nominal fee, just at the cost, he comes and he does. Amazing. Toronto में रथ यात्रा होती है. They take Jagannath ji out of the city. They cross an ocean and they go into island. And Jagannath stays one day in the island and next day he comes back. Grand Rath Yatra. San Francisco, the mayor declares a city holiday on Rath Yatra, even today. Thousands of people came to San Francisco Rath Yatra. Even for Harrisburg, I think who is the mayor or... Yeah, mayor personally, she loves us very much. So this Rath Yatra could be on any day. It doesn't have to be on this particular day, or there is no show. Actually, Rath Yatra happens on Ashad Sud Beach in India, on Jagannath Puri. But because the devotees want to participate more and more, so Prabhupada said, it doesn't matter, Lord is independent. He can come out on any day whenever he wants to. So therefore, क्योंकि कई लोग क्या होता है, जैसे यहाँ पे रहता है तो आजू बाजू जितने भी cities में रथ यात्रा होती है, they go to all रथ यात्राs. So if it is on separate days, then they यहाँ तो झगड़ा करते हैं. If there is रथ यात्रा in Washington and if we try to schedule रथ यात्रा in Harrisburg, तो वो गुस्सा करेंगे. अरे we want to come to your रथ यात्रा. कैसे चिंगूस आदमी हो, तुमने उसी दिन रख दिया, हमको प्रसाद नहीं खिलाना पड़ेगा इसलिए ऐसा. बस भर के डिवोटीज आता है. अभी एक न्यूयॉर्क से बस आएगी, एक वॉशिंगटन से बस आएगी, एक बाल्टीमोर से बस आएगी. So this is amazing. Even to New York Rath Yatra yesterday, I think there was a bus from Philadelphia and from Baltimore. Yeah. And they were fully packed. Fully packed. Even 2 जगह ही weeks नहीं before. मिलती. जगह ही नहीं मिलती. हम लोग जाते थे हमेशा न्यूयॉर्क रथ यात्रा में. On June 29th, we are planning to go to New Jersey Rath Yatra. There's a Rath Yatra in New Jersey. June? 29th. So if anybody wants to come, we can just group together and go. But everybody has to come to Harrisburg Rath Yatra. This is my humble invitation also, and as your brother or as your servant, this is my humble request also. चलो आरती माफ कर रहे हैं माफ. Actually, I also. ये आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए? हाँ, sorry. चलो. Wait, can I do it? अरे ठीक हो जाएगी. Dave! Can I try? I know how to do it. I'm not going to this. Hari Bol. While the aarti is going on, all the kids can take turn, huh? To blow the sun.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Bhaktivinoda
Huh? Krishna makes it happen. So. Kids, you want to do it? Actually, after Aarti, kids करेंगे और kids का भी टर्न बना दो. एक so everybody learns individually also. मौली आप करोगे आज? ठीक. Oh, don't come. Everybody come. Sit. भगवान को Back. he should remain our center. अरे, Come. face Krishna. Everybody come here. Come here. Come here. Yeah, that is good. Share would you try? Share. शंख बजाने के लिए। Oh. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाडधारिणे हिरण्यकाशिपुरुषः शीलटङ्कानकालाहे ईतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमरे विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की गौर प्रेमानंदी हरि बोल।
Haribol. फाइट हो जाती है इवनिंग में मैं कहूँगा Yeah, I mean, he's going to make a schedule. Probably you'll be the first because it is Come on, tell me. You alphabetical. want to do it? Can I do next? At front? Good. बच्चों That's को how you should schedule fight, right? This way the writing will fight.